Yalimadit, sir. Hey, Yarimada Chital, how are you? Fine, and you? All good, Shikar Mola. Can we start or Yeah, yeah? we can start. Okay. Ashiana, Yes, ma'am, I'm here. you can start, okay? Yeah, Ali Mother, dear participants, a very warm and heartfelt welcome to everyone joining us today from Mozambique, the Democratic Republic of Congo, and other places as well. We are very happy to have you all with us for this AI Masterclass on Google AI Studio. This program is special because it brings us together across the countries to learn how artificial intelligence can help us in our daily life, family work, studies, and businesses in a simple and practical way. In our last session, we have got a basic understanding of what AI is and how powerful it can be. Today's session is even more exciting because we are moving from learning to doing. आज हम देखेंगे कि एआई को हम अपनी रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, काम को इजी बनाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, स्मॉल बिजनेसेस और इनकम आइडियाज के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए और डेली टास्क को बेटर मैनेज करने के लिए. We are once again very grateful to have with us Mr. Fahim Ali, our respected AI expert and technology educator from the USA. Sir, in the last session, you have made AI feel very simple and easy for all of us. Many participants realized that AI is not only the technical people, it is for everyone. Today, as we explore Google AI Studio and learn step by step how to build our own AI assistants, we truly thank you for being with us again and sharing your valuable knowledge. Today's session will be in Hindi, and you are welcome to ask questions in Hindi or English. We have request to everyone to please keep your microphones muted during the session. You can type your questions in the chat, and we will also have time for the questions at the end. Thank you once again for taking time to be part of this learning journey. Let us learn together, support each other, and make the best use of the AI in our lives. With this, let us begin the today's session. Please give a warm welcome to Mr. Fahim Ali. Thank you so much, DRC and Mozambique team. I hope you are all good, and it's really pleasure to connect with you again. After such a long time, I believe it's a month or two, and then it is great also to connecting with the entire, our team here, maybe our Jamaat from the both countries. I want to give a little bit of a journey how we started and how we are here and what we will do in future. Just the vision to all of you. So अगर आपको सबको याद हो तो वी स्टार्टेड फर्स्ट फ्रॉम आर डीआरसी कॉन्गो से हमने शुरू सॉरी मोज़म्बिक से हमने शुरू किया था एंड मोज़म्बिक में जो है वो हमें एक बच्चा था जो यंगस्टर था व्हेन ही वाज विजिटिंग जीई इन दुबई then he met with his sister over there, and the sister is from Houston, from USA. And then when they were discussing about the AI, the digital, the technology, तो उस बच्चे ने बोला कि हम अभी भी जो है वो मोज़म्बिक में इतना एडवांस नहीं है जितना यहाँ पर दुबई में दिखाया जा रहा है. तो उसकी जो बहन थी उसने बोला कि इन यूएस ऑल्सो सम ऑफ द एडवांसमेंट इज नॉट देयर, but we do these sessions also in Jamaat Khanas. And so she referred me. She said कि हमें वहाँ पर AI के सेशंस होते हैं और हमारे पास फ़हीम भाई होते हैं और वो फ़हीम भाई जो है ना वहाँ पर सेशंस देते हैं. Then that young guy said that can you connect me with that guy, so then she said, yeah, I can ask and then I can share the contact detail. और फिर उसने मेरी फ़ोन नंबर उनके साथ शेयर किया और फिर उन्होंने मुझे रीच आउट किया. ही इज़ अ स्टूडेंट एक्चुअली ओवर देयर, वेरी यंग गाय. एंड फिर उन्होंने मुझे वहाँ के मुखी साहब, मुखी अनवर नाम है उनका, मोज़म्बिक में, उन्होंने मुझे वहाँ पर उनके साथ कनेक्ट कराया. And Muski Saab connected me, with the council, with Vishal Bhai and again then Shairos over there. And फिर वहाँ से जो है वो हमने मोज़म्बिक में फर्स्ट सेशन दिया और फिर सेकंड सेशन दिया.
And then Mozambique team connected me with DRC. So now we have done the session, also 2 sessions over there in the DRC. And then from the DRC team connected me with Angola team now, and I've already done 1 session with Angola. And then Angola team connected me with the South Africa team now, and the South Africa entire Botswana and all the jurisdiction. So अभी हम वहाँ पर भी सेशन करने जा रहे हैं फैब में. तो अभी आप देखें कैसे मोला कनेक्शन बना रहा है और कितने जो है वो सेशंस वहाँ पर अफ्रीका में हमारे हो रहे हैं. और शुक्र मोला एवरीवन इज लर्निंग एंड एवरीवन इज ग्रोइंग. और ये सेशन जो है वो पर्टिकुलरली क्योंकि आपका डीआरसी का और मोजम्बिक का एक सेशन ऑलरेडी हो चुका था. और हमने चाहा कि अभी हम ऐसा सेशन कराएंगे इन दोनों को साथ में मिला के, एंड देन वी कैन डू इट ऑल टुगेदर. And Google AI Studio is a complete workflow automation, is a complete areas where you can do a lot of things over there. तो we thought कि ये वाला सेशंस को हम पहले स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद अब जो इसके बाद जो सेशन होगा वो होगा फाइनल, नॉट अ फाइनल बट अगेन द एआई एजेंट्स और एआई वर्कफ्लो ऑटोमेशन, जिसमें मैं आपको ऑटोमेट करना सिखाऊंगा. एक्चुअली आपको एक डेवलपर बना दूंगा, और आप एक इजीली जो है वो कुछ भी डेवलप कर सकते हो अपने वर्क प्लेस पे और किसी पे भी. तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंशाल्लाह, मे बी इन द मंथ ऑफ फैब और मे बी मार्च, बिकॉज फैब में हमारे पास खुशहाली वीक्स भी हैं. So we will try to do it, as the availability of everyone. So start करते हैं अपन. Let me just share my screen here. Okay. So welcome. I don't want to give this welcome again. I've already given this welcome many times. I'm sure you all have went through this welcome. But I just want to give a disclaimer to everyone that make sure that this statement or this facts which I'm sharing here, these are all presented by me, as in from the presenter. And any statement of fact, anything which doesn't apply to your business, to your profession, or to your studies, or to any of your endeavors, please make sure that you reach out to any expert and get the appropriate advice from there. Okay. Usually I do a lot of sessions in Jamaat Khanas, in libraries and all that. Recent past, I've done sessions also with Girl Scouts. And this is actually more in this month than the last month. And I want to share some pictures. So ये हमने सबसे पहले Girl Scout की leaders के साथ जो है वो sessions किया था. And then with the kids, you can see these are 3rd or 4th grade kids actually. So here the Girl Scouts is different from the way we do in India, Pakistan. Girls, Girls Guide जिसको बोलते हैं या Scouts बोलते हैं, तो यहाँ पर Scouts ही होते हैं. And this is registered with the government also. So this is the first sessions which I have done. Then this is the second sessions which I have done also with a lot of kids, and they were really happy to learn AI and how the AI can help them, and then how the AI is shaping their life, their studies, and all that. And the last sessions which we have done, that was for 15 years old teens, girls थी ये, और ये भी बहुत energetic थी, and they also want to learn a lot of new things and how the AI is actually shaping their life. So this is also something new for me, and I'm connected with the kids also now, and I'm really learning. So after this session, आपके सेशन के बाद मैं एक और सेशन यहाँ पर HPC जमात खाने में, ह्यूस्टन हेडक्वार्टर जमात खाने में जाऊँगा, और वहाँ पर जो हमारा सेशन है वहाँ पर 3rd और 4th ग्रेड के बच्चे एंड उनके पेरेंट्स भी जो है वो साथ में आ रहे हैं. तो आपके सेशन करने के बाद फ़ौरन से मुझे वहाँ पर जाना है और वहाँ पर जो है वो सेशन देना है. और हम ये जमात खानों में तो यूएस में सेशंस देते ही रहे हैं, अफ्रीका में भी हमने दिए हैं, एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल दैट भी मैं जो है वो सेशंस ये दे ही रहा हूँ. I want to first share with you that what we will do today, so that you understand. तो हम जो है वो आज पूरा गूगल AI का वर्क फ्लो जो है वो जो टूल्स हैं उसके जो पूरे अंडरस्टैंड करेंगे. जो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं उसको ऑलमोस्ट हम सबको जो है वो कवर करेंगे, एंड ऑल्सो सम अदर टूल्स ऑल्सो विच इज़ नॉट मैंशनड हियर. एक एक टूल मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, कुछ चीज़ें उसमें करके दिखाऊंगा. और मज़ीद जो है वो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो आप प्लीज़ जो है वो वहाँ पर जो है वो उसके मटेरियल्स को देखिएगा. अगर नहीं हो तो आप प्लीज़ यहाँ पर बताइएगा कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं, चैट में लिखें, ताकि जो है वो हम आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें. So first of all, write your name and Jamaat Khana so that we can see that from where you are joining. Write in the chat your name. For example, I'm writing my name is Fahim and I'm from Houston, Jamaat Khana. So please write your name
and also your Jamaat Khana so that we can see that who is joining from where. We can see two names, Aisha and Riaz from DRC. Wow. We have Samir, we have Anil, we have Simran, we have Reshma, Sunita. Wow, we have Kushi. Okay, Ali from DRC also. That's amazing. So we have a lot of new people also today. We have Akram Murad from Mozambique. We have Ali Khan. We have, okay, again from Mozambique, Canada also. Wow. We have Karima from Dubai. Wow. We have also people from Toronto. Wow. And we have also people from, DRC and Mozambique. That's amazing. Huzur Mukhi Amir Ali Hirani. Wonderful, Mukhi Sab. Thank you so much for joining. And then again, we have people from Sheetal from Mozambique again, Rahim Virani from again Chimoyo. Okay. Sorry for my accent. Riaz Merchant from Mozambique. We have people from Pakistan also. We have done number of series from in Pakistan also. I think every other week we do sessions in Pakistan, and the recordings are also available, and we have done the advanced level also. We have reached so high over there, and in the entire Pakistan. So it's all, sometimes it's also they run in the Smiley TVs because the Jamaat comes too many, and then the Zoom cannot cater that one. That's why they do also on this one. Wonderful. This is amazing to see the names here. So let's start. We will first, I will first give you a little bit of overview of some of the AI tools, Google AI tools, और फिर हम जो है वो दूसरी जगह पे जाएंगे, और फिर मैं आपको कुछ जो है वो डेमो भी करके दिखाऊंगा. Feel free to ask any questions if you have in chat. And yes, this session is recorded, and you will get the recording also of this session. And also the previous sessions, if you have missed, the recordings are also available. If you need, you can request in the group, and then we will share with you the previous sessions. And if you are not in the WhatsApp group, please write here that you want to be in the WhatsApp group, but write also which WhatsApp group, DRC or Mozambique, because there's a two WhatsApp group of two Jamaat, and then they can send you the link, and then you can join any of them. Okay, let's start. So first of all, I want to give you a complete Google Labs, Google AI apps, and then how the AI apps actually work. Let's start first from the Google AI Studio. Okay. I've already recorded few things here and there so that we don't waste much of our time. But मैं आपको कुछ चीजें तो दिखाऊंगा और कुछ चीजें करके दिखाऊंगा. तो ये जो है वो हमारा Google AI Studio है. इस Google AI Studio में इमेजेस भी होती हैं, इसके अंदर फीचर्स भी हैं, इसके अंदर जो है वो सब चीज़ें आप चैट भी कर सकते हो. इसके लिंक्स वगैरह सब आपको मैं भेज दूंगा. सो डोंट वरी एंड डू नॉट सर्च एनीथिंग ऑन गूगल राइट नाउ. और इसके अंदर जो है वो सब चीज़ें होती है, इमेजेस नैनो बनाना, मॉडिफाई आप चीज़ें कर सकते हो, आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हो और इमेजेस को भी मॉडिफाई कर सकते हो. ये थोड़ा सा गूगल जेमिनाई से डिफरेंट चलता है, होता वही है बट थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट तरीके से, अच्छे तरीके से जो है वो चलता है. पूरा एक स्टूडियो होता है आपके पास जिसमें आप एआई एप्स भी बिल्डअप कर सकते हो, और जिसके अंदर आप जो है ना वो मटेरियल्स जो होते हैं वो भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो. मैं आपको उसको एक वो भी दिखा देता हूँ. सो ये सबसे पहले गूगल एआई स्टूडियो है. मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट. तो ये देखें, ये गूगल एआई स्टूडियो है. यहाँ पर आप अपनी चैट्स वगैरह जो भी आपको लिखना हो वो आप लिख सकते हो. इसके अंदर प्रॉम्प्ट्स आ रहे होते हैं, और जो भी अगर आपको आप ऐप बिल्डअप करना है, चैट विद मॉडल्स करना है, या एपीआई बनानी है. जब मैं आपको नेक्स्ट जो है वो सिखाऊंगा एडवांस वाला, जिसमें अपन एजेंट्स और वर्क फ्लो ऑटोमेशन करेंगे. एजेंट्स और वर्क फ्लो ऑटोमेशन कैसे होता है मैं आपको बताऊं. ये सपोज कि अगर आप कोई भी एक चीज़ करते हो तो वो ऑटोमेटिकली एजेंट्स पीछे से उसको करना शुरू कर देते हैं, और आपको जो वो रिजल्ट्स ला के देते हैं. कनेक्ट करते हैं दो चार चीज़ों को एक साथ, और फिर जो है वो आपको रिजल्ट्स ला के देते हैं. तो वो जो एजेंट्स होता है उसमें एपीआई की ज़रूरत होती है. एपीआई इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. बहुत ही ईजी होता है. एक क्लिक करते हैं, एक कोड निकलता है, उस कोड को यहाँ पर डाल देते हैं. बस सिंपल है इतना. आप समझो वो एपीआई है वो कैसे करेंगे, हमें तो आता नहीं है. आई एम नॉट फ्रॉम द टेक बैकग्राउंड एंड ऑल दैट. बहुत ही ईजी होता है. आप कोड जनरेट करते हो, उसको कॉपी करते हो, यहाँ पर पेस्ट कर देते हो. जब आप ये दो चीज़ों को कनेक्ट कर देते हो तो LLM, विच इज़ लाइक गूगल स्टूडियो, इज एक्चुअली LLM, लार्ज लर्निंग मॉड्यूल.
इसी तरह से चैट जीपीटी इज ऑल्सो LLM। तो वो LLM और जो एजेंट होता है वो आपस में टॉक करना शुरू कर देता है, बात करना शुरू कर देता है, दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से जो है वो ये खाली जो है वो दोनों चीज़ें आपस में चलती हैं। तो ये गूगल AI स्टूडियो है, इसमें आप जो है वो हर चीज़ कर सकते हो, इसमें आप ऐप बिल्ड कर सकते हो, अगर आपको चैट करना है विद मॉडल चैट कर सकते हो, ट्राई जेमिनाई फ्लैश कर सकते हो, VO3 जो है वो यहाँ से आप डायरेक्टली चला सकते हो, नैनो बनाना जो है वो सॉरी, नैनो बनाना विच इज़ लाइक पिक्चर्स क्रिएटिंग एंड ऑल दैट, ऑडियो टेक्स्ट जनरेट करना हो किसी भी चीज़ का, तो टेक्स्ट टू ऑडियो भी आप जो वो जनरेट कर सकते हो। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर ऑन एनी अदर वेबसाइट्स कि यहाँ पर मैं जाऊँ 11 लैब पे जाऊँ, वहाँ पर जाके मैं ऑडियो जनरेट करवाऊँ या मैं पिक्चर्स बनवाऊँ या वीडियो बनवाऊँ या क्यों, और अब आपको सब यहाँ पर चीज़ें मिलती है, ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर चीज़ें मिल सकती है, बट यू नीड टू लर्न हाउ यू नो द थिंग्स वर्क। सो दिस इज गूगल AI स्टूडियो फॉर यू। हम थोड़ा सा और मज़ीद इसको आगे सीखेंगे, बट मैं आपको दूसरी चीज़ें भी सिखाता हूँ, बताता हूँ। Okay, so then again, the next I want to give you is Opal, OPAL. ये लिंक भी है यहाँ पर, मैं आपको भेज दूंगा सबके। Opal is actually, is a mini AI app without coding and it enables task automation. ये आपके जो टास्क होता है उसको ऑटोमेट कर देता है, कंटेंट क्रिएशन में आपको हेल्प करता है, और आइडियाज जो है उसको टेस्ट करता है। मतलब अगर कोई आपने ऐप बनाई है तो उसको टेस्ट करेगा, या आपकी AI ऐप को जो है वो विदाउट कोडिंग बना देगा, या आपकी टास्क जो है वो उसको ऑटोमेट कर देगा। कैसे, हम देखते हैं, आ जाए। तो सबसे पहले जो है वो ये एक आप सपोज के दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हो, एक क्विज को, आप एक आपके पास एक इनपुट है, आपके पास एक इनपुट है और आपके पास एक जनरेट करना चाहते हो आप क्विज को। तो ये आपको ओवरऑल उसका आउटपुट देगा, और ये इस तरह से पूरा उसका एक आउटपुट बन जाएगा, और आपके पास एक ऐप जनरेट हो जाएगी। वो ऐप को जो है वो आप कहीं भी जो है वो लिंक शेयर कर सकते हो। सो आपको क्या जाना है, आपको पहले ओपन विद गूगल जो है वो उसमें जाना है। उसके बाद आपको अपना इनपुट देना है। इनपुट फॉर एग्जांपल यू हैव योर लेक्चर वीडियो, आपको अपनी लेक्चर वीडियो उसके अंदर डालनी है। फिर आपको बताना है कि मुझे करना क्या है इस लेक्चर वीडियो से। आपको क्विज बनाना है, आपको पोस्टर्स बनाने हैं, आपको जो है वो इसमें से वीडियो की वीडियो बनानी है, आपको इसके क्वेश्चंस बनाने हैं आपको क्या बनाना है। तो वो जब आप जनरेट करोगे, आप सॉरी, आप जब उसको लिखोगे तो वो आपको एक ऐप बना के, एक इंटरैक्टिव चीज़ें बना के आपको देगा, जिसमें आप जो है वो उसको यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज ओपन फॉर यू। Okay, let's move on. So this is दिस इज नैनो बनाना प्रो। नैनो बनाना में क्या है कि आप कोई भी पिक्चर्स जनरेट कर सकते हो, आप कोई भी पिक्चर्स को एडिट करवा सकते हो, आप कोई भी पिक्चर्स को जो है वो ऐसी चीज़ बना सकते हो जिसमें आपको ऑलरेडी, अगर आपके पास कोई पिक्चर्स है, कोई पोस्टर्स है, कुछ भी है, तो उसको री यूज़ करवाने के लिए भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं खाली आपको एक विजन दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए, जैसे हमने वॉल्यूम इमेजेस उसके पूरे कलर्स चेंज कर दिए पिक्चर के, इसी तरह से यहाँ पर हमने बोल दिया कि फ्लावर्स को ज़्यादा जो है वो ब्लर कर दो, और ज़्यादा जो वो कर दो, पीछे जो पिक्चर ब्लर कर दो, तो ये भी हो गया। इसी तरह से यहाँ से डे टू लाइट डे टाइम कर सकते हैं, नाइट टाइम कर सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम द सेम पिक्चर यू कैन एक्चुअली डू। सो दैट्स अ नैनो बनाना। और नैनो बनाना में एक और भी चीज़ होती है कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, वॉट एवर द आइडिया यू हैव, यू कैन जस्ट ऐड दैट आइडिया एंड देन आइडिया विल बी फॉर्मेटेड इन अ पिक्चर। और वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अगर आप कभी भी कोई अपनी बिजनेस का कोई फ्लायर बना रहे हो, अज्यूम आपके पास कोई होम बेस्ड बिजनेस है, फॉर एग्जांपल यू हैव कैटरिंग बिजनेस, अगर आप खाना बनाना या उसके कुछ बिजनेसेस घर में कर रहे हो, या थ्रेडिंग या वैक्स या उसके बिजनेसेस कुछ कर रहे हो, या सलोन के कोई बिजनेसेस हैं, या आपके पास कोई ट्रेडिंग के बिजनेसेस हैं, तो उसका फ्लायर्स जो होते हैं ना, उसमें जो पिक्चर्स डालना होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और वो पिक्चर्स जो है वो आइडिया आई कैचिंग होना चाहिए। तो वो पिक्चर्स यहाँ से आप जो वो कैच करवा के बनवा सकते हो नैनो बनाना प्रो। पहले चैट जीपीटी भी बनाता था, बट आई बिलीव कि नैनो बनाना अभी इसके जो मॉड्यूल हैं वो ज़्यादा एडवांस हैं, वहाँ पर आप अगर इसको इस्तेमाल करें तो ज़्यादा जो है वो अच्छा होता है। ये कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ गूगल जेमिनाई में जाना है। यहाँ पर आप यही इस पे गूगल AI स्टूडियो में आप जो है वो एक्सप्लोर नैनो बनाना पे आप आ गए, और नैनो बनाना पे आके आपने यहाँ पर कोई भी इमेज के बारे में लिख दिया, जनरेट एन इमेज ऑफ बनाना,
वेयरिंग अ कॉस्ट्यूम। ओके, ये खुद ही आ गया, मैंने कुछ नहीं लिखा, बट चलो ये भी बना देते हैं। तो आप जैसे ही आप उसको करोगे तो ये आपको बोलेगा गो टू पेज, और ये आपको प्रोजेक्ट जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा और आप उसको कर सकते हो। अदरवाइज आप गूगल जेमिनाई में भी जा सकते हो। यहाँ पर गूगल जेमिनाई में जाके आप यहाँ पर जो है वो एक कुछ भी, अगर आपको कुछ पिक्चर्स बनाना लिखना हो तो आप लिख सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको क्रिएट इमेज जो है वो क्लिक करना होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पर टूल्स में जाके आपको क्रिएट इमेजेस जो है वो उसको क्लिक करना होगा। ये इस तरह से नैनो बनाना की पिक्चर आ जाएगी, और बनाना की पिक्चर आने के बाद आप यहाँ पर कुछ भी लिखोगे कि ये इमेज बना दो, तो वो उसकी इमेज बना देगा, कनेक्टिंग मोर ऑफ योर काइंड ऑफ थिंग। इसी तरह से आप अगर अपनी ही पिक्चर्स प्रोफाइल पिक्चर्स बनाना चाहो तो उसको डाल के आप प्रोफाइल पिक्चर बना सकते हो। इसी तरह से आप अपनी पिक्चर्स को किसी और तरीके से जो बना चाहो, पीछे किसी स्टार्स को खड़े कर दो, या कोई जगह पीछे बना दो, तो वो भी आप बना सकते हो। मैंने बहुत सारी तस्वीरें आपको बना के दिखाई दी, जैसे स्माइली सेंटर मैंने बना दिया था। इस मैंने सिटीज की ऊपर ओवरऑल व्यू बना के आपको दिखाया था। तो कुछ भी आप इसमें अच्छे से बना सकते हो, एंड it is amazing, and you can actually try using the nano banana here, the image generation. I'm sure you guys may have done it, but आप try कीजिएगा। ये भी एक इसका नैनो बनाना प्रो जो है वो पार्ट ऑफ गूगल एआई स्टूडियो है। ओके, फिर हमारे पास एक और आता है विच इज हिस्क और विस्क, इस तरह से भी बोल सकते हैं इसको। तो ये इसमें जो है ना, ये बहुत सारी चीज़ों को connect करता है। ये सबसे पहले आपके प्रॉम्प्ट्स को प्ले करता है, उसको एक्सपीरियंस देता है, और फिर आपकी बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करता है। होता क्या है कि सबसे पहले ये सब्जेक्ट को लेता है, उसके बाद फिर सीन को लेता है, उसके बाद फिर क्रिएट करता है। अभी इसमें सब्जेक्ट देखें, सपोज कि हमें यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो एक बंदा हमने डाला, हमने पिक किया सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल एक पर्सन को हमने डाल दिया, और हमने उस पर्सन की इमेज को अपलोड कर दिया। उसके बाद फिर हमने सीन को उठाया। सीन मीन्स हमने कोई भी एक ऐसी जगह उठाई जहाँ पर हम चाहते हैं कि वो बंदा वहाँ पर हो। ओके, तो हमने उस सीन को उठा दिया, मतलब तीन चीज़ों को हम कनेक्ट करना है, तो हमने इस सीन को उठा दिया, इस सीन को वहाँ पर डाल दिया। उसके बाद फिर हमने अपना स्टाइल पिक किया कि हमें चाहिए क्या, तो हमने बोला उसको 90 विंटेजेस जो है वो उसकी स्टाइल में हो वो। और फिर हमने डिटेल्स उसको दी कि भाई ये एक 90s जो वो है उसमें वो बाइक्स पे राइड कर रहा हो। तो अब आप उसको एडिट भी कर सकते हो। अब आप देखें वही बंदा, सीन जो पीछे आपने दिया था वो, और आपने 90 विंटेजेस के स्टाइल में आपने दे दिया उसको, एंड देन यू हैव जनरेटेड द इमेजेस। सो तीन चीज़ों को आपने कंबाइन करके और एक जो वो वीडियो बना दी, या एक फोटोज बना दी, या एक शॉर्ट क्लिप बनाने के लिए आपने एक आइडिया को जनरेट करने के लिए आपने इस तरह से किया। तो ये लेयर्स को जो वो कनेक्ट करता है, और तीन चीज़ों को जो वो आप कनेक्ट करके विजुलाइज करके उसको आइडियाज़ देके वो बना सकते हो। वेरी बेस्ट फॉर एनी बिजनेसेस। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव अ मॉल बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव अ स्टोर बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव एनी सप्लाई और चेन बिजनेस। तो आपने अपना प्रोडक्ट बताया विच इज़ लाइक योर सब्जेक्ट, उसके बाद फिर आपने सीन बताया। फॉर एग्जांपल आपकी सिटीज़, अगर आपकी सिटी किंशासा है या आपकी सिटी कोई भी सिटी है, तो आपने अपनी सिटी के पीछे बैकग्राउंड डाल दिया। फिर आपने आपने ये बताया कि जो है वो मुझे क्या पीछे बैकग्राउंड पे मुझे क्या चाहिए, मतलब स्टाइल क्या हो, तो आपने मॉडर्न स्टाइल कर दिया। या आपने बोला कि जो स्टाइल हो वो 90s का हो, या मॉडर्न स्टाइल हो, या जो भी हो। तीनों चीज़ों को आपने कंबाइन किया, फिर आपके पास एक प्रोडक्ट निकल के आ गया, और उसको आप अपने फेसबुक और वीडियो और उस पर भी डाल सकते हैं, जिसमें आपके लोग जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं आपके बिजनेसेस में, और आप उनको अच्छे से समझा सकते हैं। सो दिस इज़ अगेन another wonderful tool from Google which you can actually try. Okay, the next one is Flow. Flow is also another AI film studio, जिसमें आपके पास वो VO3 इमेजेस और जेमिनाई तीनों को जो वो कंबाइन करके एक सिनेमेटिक वीडियोस और कैमरा के बगैर जो वो आपको एक वीडियो बना के देता है, और आपको बड़ा अच्छे से जो वो करके देता है। तो ये सबसे पहले क्या करता है कि ये जो है ना वो एक फ्लो बनाता है। पहले जो वो तीन तीन चार चीज़ों को कनेक्ट करता है, इमेजेस एंड ऑल दैट, और उसके बाद फिर जो वो उसको बनाना शुरू करता है। फ्लो इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट काइंड ऑफ एन एआई फिल्म स्टूडियो, जिसमें आप अगर कोई मूवी या उससे बैकग्राउंड या आर्ट से बैकग्राउंड रखते हैं, तो आप जो है वो उसमें बना सकते हैं। आप जो है वो आपने एक प्रोजेक्ट उठाया, आपने बोला कि मुझे जो है वो तीन चीज़ें मुझे करनी है। बैक सीट ऑफ टैक्सी, आपने बोला कि वो मुझे चाहिए, और उसके अंदर वो बंदा जो है वो बैठ के कुछ जेलीफिश कर रहा हो या कुछ काट रहा हो। देखें ये बैक सीट ऑफ टैक्सी आ गई। अब एक ही इमेज है और एक ही जगह है, और आप देखिए डिफरेंट जो है वो फोटोज हमने डाल दिए कि कोई ऑपरेशन कर रहा है, कोई कलर कर रहा है, कोई एम्बुलेंस में जा रहा है।
कोई आर्ट वर्क लेके आ रहा है और कुछ ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, तो ये डिफरेंट जो वो चीज़ों को आपने कनेक्ट कर दिया, एक ही काइंड ऑफ फ्लो करके उसको आपने डिफरेंट चीज़ें बना दिया। तो दिस इज एक्चुअली more of a flow which extends your videos, extends your ideas into a different generation. तो अब ये देखिए, ये पूरा जो है वो आपने एक पूरा फ्लो बना दिया, पूरा जो आपने कन्वर्ट कर दिया। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक आपने स्ट्रीट की जगह ले लिया, आप अपने अपना जो प्रोडक्ट है उसको आपने ले लिया। अब आप उसी प्रोडक्ट को डिफरेंट जगहों पे जो है वो दिखा रहे हो। आप बोल रहे हो कि बैक सीट ऑफ कार, टैक्सीज जो है वो आप उसमें दिखा रहे हो, आप जो वो डिफरेंट एरियाज में दिखा रहे हो, डिफरेंट सिटीज़ में दिखा रहे हो, मगर एक ही प्रोडक्ट को आपने डिफरेंट तरीके से अपने प्रोडक्ट को घुमाया, उसको जो वो डिफरेंट तरीके से उसको आपने दिखाया ताकि वो किए। अच्छा, आई थिंक देयर आर सम मे बी किड्स और समवन हु इज प्लेइंग विद स्क्रीन। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू नॉट डू दैट वन, ताकि जो वो हम ये हमारा डिस्टर्बेंस नहीं हो। Let me just stop the sharing the screen and then share again. Okay. Okay. ओके, ये एक बड़ा जबरदस्त है। ये भी पूरा जो है वो अपना खुद जेमिनाई ने बनाया है। अब इसको बनाने का बड़ा अच्छा तरीका है, मैं आपको बताता हूँ, भी दिखाता भी हूँ, फिर आपको बना के भी दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप इमेजेस देख लीजिए, दो अलग अलग इमेजेस है, ये फर्स्ट इमेज है और ये सेकंड इमेज है। और ये यूट्यूब की जो एक वीडियो है उससे ये दोनों चीज़ें बनी है। कैसे बनी है? सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक यूट्यूब वीडियो को ले लिया और हमने यहाँ पर उसको जो है वो पेस्ट कर दिया। तो हमने यूट्यूब वीडियो को पेस्ट किया, हमने बोला कि इस वीडियो को समराइज कर दो, लाइक गिव मी अ समराइज वीडियो ऑफ दिस वीडियो। तो उस वीडियो को सबसे पहले उसने समराइज किया, उसके जो की पॉइंट्स है उसको आइडेंटिफाई किया, जो यूट्यूब वीडियो की मैंने लिंक भेजा था, और उसको उसने समराइज करके उस वीडियो को मेरे पास उसने दे दिया। जब मेरे पास यूट्यूब वीडियो की एक पूरी समरी आ जाती है, तो फिर मैं उसको बोलता हूँ कि जो है वो अब मुझे आप सेकेंड स्टेप ये करो कि आप मुझे जो है वो इस प्रॉम्प्ट के हिसाब से इसका हैंड ड्रॉ स्केच जो है वो मुझे बना के दो, पूरा विजुअल बना के दो कि वीडियो में बोल क्या रहा है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मेन आइडिया क्या है, और 3D स्टाइल में होना चाहिए। और फिर वो उसका पूरा जो है वो मुझे बना के देता है। तो अब मैंने उसको वही प्रॉम्प्ट दे दिया, मैंने इसको जनरेट जो है वो वीडियोस से जो वो नैनो बनाना में करके उसको पूरा प्रॉम्प्ट दे दिया। एंड देन फाइनली यू विल सी दैट माई स्केच इज एक्चुअली रेडी, और मैं उसको जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। आप देखें यहाँ पर दोनों जो है वो स्केचेस इसके, ये फाइनल रिजल्ट है। एक यूट्यूब वीडियो अपन ने डाली, उसको उसने समराइज किया, और फिर फाइनली जो है वो उन्होंने उसको बना के दिया। बड़ा इजी है, मैं वापस से आपको यहाँ पर खुद करके दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर आना है, सबसे पहले आपको कोई भी यूट्यूब वीडियो लेनी है। आप यहाँ पर आके कोई भी यूट्यूब वीडियो लेके उसको क्लिक करें, उसके बाद आप उसको बोलें कि समराइज दिस वीडियो। ओके, एक मिनट में, आई डोंट नो इस माई कंप्लीट स्क्रीन इज शेयर और, एक मिनट, लेट मी शेयर माई एंटायर स्क्रीन। ओके, सो यहाँ पर आप सबसे पहले गूगल जेमिनाई में आ जाएंगे। गूगल जेमिनाई में आके आप कोई भी यूट्यूब वीडियो आप डाल सकते हैं। हम एक काम करते हैं कि हम DRC की जो वीडियो है, जो हमने लास्ट टाइम भी हमने ट्राई किया था, DRC काउंसिल वीडियो, ढूंढनी पड़ेगी अभी। ओके, या हियर यू गो। तो सबसे पहले ये हमने वीडियो ले ली। अगर आप देखें यहाँ पर, हम इस वीडियो को पहले तो ओपन कर लेते हैं। ये एक काउंसिल की वीडियो है, DRC की, जो आपस में वो डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट द काउंसिल एंड ऑल दैट। आई थिंक इट्स रीसेंट वीडियो, बट हम इसको सबसे पहले शेयर करते हैं। इसकी जो कॉपी है, लिंक है, उसको कॉपी कर लेते हैं, और फिर हमारे यहाँ पर हम विजुअल पे आ जाते हैं, और इसको हम क्लिक करके इस वीडियो को पहले पेस्ट करते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि समराइज दिस वीडियो। ओके, हमने इसको क्लिक किया। अब इस वीडियो को वो समराइज कर रहा है, यूट्यूब वीडियो को, और यूट्यूब वीडियो को समराइज करके जो वो आपको बताएगा कि इस वीडियो में है क्या। अब आप देखेंगे स्माइली टॉक 2024, उसके बारे में ये बता रहे हैं। हमें बता रहे हैं कि भाई वीडियो में ये है, आगा खान इकोनॉमिक प्लान, आगा खान इकोनॉमिक प्लानिंग बोर्ड जो है वो ये बोल रहा है, आगा खान एजुकेशन बोर्ड ये बोल रहा है, यूथ एंड स्पोर्ट्स बोर्ड ये बोल रहा है, और फिर आखिर में उन्होंने हमें वो वीडियो दे दी। वीडियो देने के बाद अगर आप देखें कि यहाँ पर हमने उसको एक प्रॉम्प्ट दिया था, ये वाला प्रॉम्प्ट, और वो प्रॉम्प्ट को हम कॉपी कर देते हैं, और हमने प्रॉम्प्ट से पहले उसको बोला कि आप जो है वो सेलेक्ट करो हमारा क्रिएट इमेजेस को, जो है वो हमने क्लिक करके फिर हमने उसको सेलेक्ट करवाया था। तो ये मैं उसको प्रॉम्प्ट जो है वो कॉपी कर लेता हूँ।
और फिर ये स्क्रैचेस का जो है वो पूरा प्रॉम्प्ट है, मैं आपको प्रॉम्प्ट भी जो है वो भेज दूंगा ताकि आप भी खुद बना सको। मैंने इस प्रॉम्प्ट को जो है वो पेस्ट किया, सॉरी, तो यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। ओके, मैंने प्रॉम्प्ट को पेस्ट किया और यहाँ पर टूल जो है वो मुझे क्रिएट इमेजेस को क्लिक करना ज़रूरी है। अगर मैं टूल क्रिएट इमेजेस को क्लिक नहीं करूँगा तो यहाँ पर जो है वो उसको नहीं बनाएगा। तो आपको टूल क्रिएट इमेजेस को क्लिक करना ज़रूरी है ताकि वो उसको अच्छे से बनाए। हमने जैसे ही उसको क्लिक किया, आप देखिए क्लिक करने के बाद अगर जब मैं इसको जनरेट करता हूँ तो पूरी जो ऊपर वाली जो समरी है उसको जो है वो ये अभी नैनो बनाना में क्रिएट करके मुझे पूरा बना के दे देगा। थोड़ा टाइम लगाएगा, होपफुली मे बी 1 or 2 minutes, बट इट विल गिव मी द कंप्लीट जो अपनी जो काउंसिल की वीडियो है ये वाली डीआरसी की, वो पूरा कंप्लीट उसको मुझे समराइज करके उसने यहाँ पर दे दिया। अभी भी बना रहा है ये, और ये पूरी जो है वो आपको एक एक समरी दे देता है। ये बड़ा अच्छा होता है कि कोई भी एक वीडियो है या कोई भी एक बुक है, अगर सपोज आप बच्चों को कोई बुक बना के देना चाहते हैं, आप देखें ये कैसे इसने बना दिया। देखें मैंने कुछ भी नहीं किया, इसमें इसने क्या किया, सबसे पहले मिडिल में लिखा स्माइली टॉक 2024 डीआरसी स्केच समरी। अब उसके बाद फिर यहाँ पर इसने क्या किया, बड़ा अच्छा बनाया इसने। देखें ये एजुकेशन बोर्ड कोर गाइडेंस ऑफ 3 गिफ्ट फ्रॉम द इमाम। अब इमाम की तरफ से 3 गिफ्ट ये वीडियो में उन्होंने बोला है। सबसे पहले उन्होंने बोला मौलाना हाजिर इमाम 88 बर्थडे, और फिर उन्होंने इमाम ने ये जो वो चीज़ें हमें मेन चीज़ें कंटिन्यूस एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, कंटिन्यूस लर्निंग और हेल्थ के बारे में बोला है। उसके बाद फिर इंस्टीट्यूशनल अपडेट एजुकेशन बोर्ड ने हमें ये बताया कि ये मेरी अपडेट्स हैं। उसके बाद वाइस बी ने जो हमें ये बताया। उसके बाद वैप ने वुमेंस एक्टिविटी पोर्टफोलियो ने हमें बताया कि अभी देखिए अगर वुमेंस एक्टिविटी आया तो यहाँ बीच में वुमेन भी आ गई और की एरियाज जो वो यहाँ पर जनरेट हो गए। फिर ईपीबी के बारे में, इकोनॉमिक प्लानिंग बोर्ड के बारे में जो वो उन्होंने ये बताया, और हेल्थ बोर्ड के बारे में यहाँ पर जो पूरा एक स्केच जो वो आ गया। और यहाँ पर आप देखें पूरी एक समरी बनकर एक पूरा अंडरस्टैंड। अब ये अगर इस तरह से आप बना के अपना किसी भी लर्निंग के लिए अगर आप बनाते हो, अगर आप सपोज कि इतनी बड़ी वीडियो, अभी ये वीडियो ऑलमोस्ट कितने मिनट की थी, अगर आप देखें ये तकरीबन 13 मिनट्स की थी। वैसे तो इतनी बड़ी नहीं थी, छोटी थी, मगर कुछ वीडियोस इतनी बड़ी होती हैं कि आपके पास टाइम नहीं होता। एंड समटाइम्स ड्यूरिंग द वीडियो जो वो हमारे मैसेजेस भी आ रहे होते हैं, हमारे फ़ोन भी बज रहे होते हैं, नोटिफिकेशंस भी आ रही होती है, वी कैन नॉट फोकस व्हाट एग्जैक्टली दे आर सेइंग, राइट। तो यहाँ पर आपके पास पूरी समरी आ गई। आपको कोई बोले आपने वो हमारी वीडियो देखी है जो हमने काउंसिल में बनाई है, आपने बोला हाँ 1 मिनट सब्र करना, आपने गए उसकी वीडियो को निकाला, यहाँ पर डाला और समराइज़ किया, और थोड़ी देर के बाद आपने बोला हाँ 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 वैक में तो जो वो सुनीता आपने ये बोला था, राइट। सुनीता बहन आपने जो वैप में तो ये बोला था, एजुकेशन बोर्ड में इकोनॉमिक में आपने ये बोला था। सो समटाइम्स यू कैन कनेक्ट एनी ऑफ योर थॉट्स और एनी ऑफ दैट इन इट्स वेरी इजी। आप देखिए कितना इजी था, बिल्कुल इजी तरीके से हमने उसको बना दिया। अच्छा, यही चीज़ को हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि इसको वाइट बोर्ड स्टाइल में भी बना दें। मतलब मैं इसको बोलूँ कि क्रिएट सिमिलर विद वाइट बोर्ड स्टाइल। इसी चीज को वो व्हाइट बोर्ड स्टाइल में भी बनाना शुरू कर देगा। अभी व्हाइट बोर्ड मीन्स के बोर्ड पे जैसे अपन कैसे लिखते हैं, व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं, उस तरह से स्टाइल में बनाना शुरू करेगा और आपकी पूरी Unnecessary वीडियो to जो है ban. वो व्हाइट बोर्ड स्टाइल में जो है वो बन जाएगी। और जो वो आप उसको किसी भी तरीके से उसको यूज़ कर सकते हो। आप उसको कोई भी चीज़ को जो वो अगर किसी बच्चे को समझाना हो, अपने स्टूडेंट्स को समझाना, तो वो भी आप उसको उस तरह समझा। अब देखें ये पूरा व्हाइट बोर्ड स्टाइल में बन गया है। मतलब बोर्ड पे कैसे लिखते हैं, आप देखें ये पीछे बोर्ड है, एक्चुअली ये बोर्ड बना हुआ है। और जो बोर्ड स्टाइल में जो है वो उसको पूरी जो वो चीज़ें लिखी हुई है। Yeah, so that's again, amazing things for you. आप इसका मैं आपको ये कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ आपके यहाँ पर, सॉरी, चैट पे। एंड आई वॉन्ट यू टू मेक समथिंग टुडे नाउ। आप कुछ ना कुछ बनाएं, आप मुझे बताएं, यहाँ पर भिजवाएं, यहाँ पर कुछ दिखाएं, यहाँ पर कुछ अगर उसका कोई लिंक हो तो आप भिजवाएं, ताकि जो वो हम देख सके कि आप जो वो क्या बना सक रहे हो और आपके पास भी वो क्या। आई वांट टू जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ मोजाम्बिक। ओके, सो मोजाम्बिक एंड डीआरसी टीम, maybe towards the end you can show us, send us your um, link of your your WhatsApp group so that people can join.
You can mute yourself and then ask the questions towards the end. Host, can you please mute? Okay, good. सही है. और सॉरी, आई थिंक देयर वाज सम स्क्रीन कंफ्यूजन, सो मैंने अभी इंटायर स्क्रीन जो है वो शेयर कर दी है, सो अभी आपको पूरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी. आई होप यू कैन सी द इंटायर स्क्रीन नाउ, इंक्लूडिंग द चैट्स. So whenever I say, are you all with me? So what do you need to do? Are you all with me? Are you all with me? Yes, yes, sir. No, Yes, you don't have to yes. say yes. You don't have to say yes. You have to say your Jamaat Khana name. Yeah. Yes. देखें, आरिस जो है वो उसको याद था. So you have to write your Jamaat Khana name. So whenever I say, are you all with me? Then you have to write your Jamaat Khana name. And your Jamaat Khana name, for example, I'm writing my Jamaat Khana name, which is Houston. So you are writing your Jamaat Khana name. Yeah. So I can see that you are there and you are listening. Not eating your chai, samosa, party nahi chal rahi hai abhi. I understand that today is also a holiday period in DRC, but still people have joined. Those who have missed, definitely they can see the videos recording and all that. आपके पास एक लॉन्ग एक छुट्टियां आ गई हैं. आपकी गवर्नमेंट बड़ी जो है वो ग्रेशियस है, जिसने बड़ी बड़ी छुट्टियां आपको दी हैं. And then you are joining. So Smiley Jamaat Khana and Center. Yes, thank you so much. You are joining Sheetal from Smiley Jamaat Khana and Center. Great. So let's move on. Give me 1 second. ओके, तो इस तरह से आप जो वो स्केचेस बना सकते हैं. आप कोई भी अपना आइडिया उसको पूरा जो है वो मिथ में कन्वर्ट करके इस तरह से चीज़ें बना सकते हैं. एक और चीज़, आप अपने बच्चे को बोलो कि कोई भी ड्राइंग करे. यहाँ पर देखें, जो वो हमने क्या किया है, एक बड़ा यहाँ पर दिखाया गया. यहाँ पर क्लाउड होने चाहिए, यहाँ पर जो है वो कैसल होना चाहिए, यहाँ माउंटेन होने चाहिए, ग्रास होना चाहिए, और यहाँ पर एक एक वाटर जो है वो स्टिल वाटर जो है वो हो रहा हो, या एक रोड बना हुआ हो, रोड से जो वो लोग जा रहे हो. अब उसी आइडिया को आप देखें किस तरह से नैनो बनाने ने एक पूरा अच्छे से जो वो यहाँ पर क्रिएट कर दिया है. और आप देखिए कितना अच्छी जो वो वीडियो और कितनी अच्छी जो वो फोटोज बना दी. उसमें आप फिर अगर उसमें कुछ भी एडिटिंग करना चाहें तो आप कर सकते हो. अगेन, दीज आर फ्री टूल विच यू कैन यूज ऑल्सो विथ योर किड्स. आप कोई भी चीज़ बना के, हम लोग क्या करते हैं, मैं और मेरी डॉटर, हम लोग कोई भी चीज़ें बनाते हैं, फिर हम इसके अंदर डालते हैं, फिर वो पीछे से बनाता है, और वो बड़ा खुश होते हैं बच्चे जो है वो अपनी क्रिएटिविटी को देख के. अच्छा, एक चीज़ जो है वो आप इमाम के भी फरमान है और हम भी जो वो सुनते हैं, बच्चों के हवाले से बोलता हूँ कि अभी आप देखिए, बच्चों से स्क्रीन दूर नहीं कर सकते हैं. डेफिनेटली it's impossible now, but you can limit it and bring it something which is for learning for them. देखिए, अगर हम बच्चों को जो वो चीज़ें देते हैं, वो कोशिश करें ऐसी चीज़ें हों जो हम ये स्काउट्स में भी बच्चों को यही सिखाते हैं, ये यूथ इन स्पोर्ट्स बोर्ड में भी हम यही सिखाते हैं बच्चों को, कि आप जो वो बच्चों के साथ ऐसी चीज़ें कनेक्ट करवाएं जहाँ पर बच्चा यूज़ करे, बट यूज़ करे विद अ सेफ जोन एंड एज अ लर्निंग पार्टनर, not as a partner of watching only the YouTube videos or maybe browsing things and all that. Maybe a learning partner. तो ये गूगल AI स्टूडियो आपके लिए बड़ा अच्छा लर्निंग पार्टनर होता है, आपके बच्चे के लिए, आपके लिए, जिसमें वो अपना एक अलग अंदाज से जो वो लर्निंग कर सकता है. लर्निंग गाइड, लर्निंग कोच भी मैं आपको सिखाऊंगा अभी आज के ही सेशन में, कि आप किस तरह से उसको यूज़ करके अपने बच्चों के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं. लेट्स बिल्ड एन ऐप. सो अभी इसमें जो है ना, एक गूगल AI स्टूडियो में ऐप्स भी होती हैं, आप उसको ऐप भी बना सकते हो. मैं आपको एक ऐप बना के यहाँ पर दिखाता हूँ, बिल्कुल इजी तरीके से. आप देखें, मैं कुछ भी नहीं करूँगा और एक ऐप जो है वो आपकी बन जाएगी. सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं. अब यहाँ पर आप देखें गूगल AI स्टूडियो में, यहाँ पर मैं आपको लिंक भी भेज देता हूँ. वैसे तो मैं आपको सारे लिंक्स भेजूंगा, बट फिर भी अभी एक लिंक भेज देता हूँ. ओके, किसी ने कुछ बनाया है बड़ा ज़बरदस्त, वेरी गुड. मनीष पुंजवानी ने कुछ बनाया है, उसको हम क्लिक करते हैं, मेरे पास ओपन हो गया. ये देखिए, मनीष ने बनाया द न्यू वर्क स्मार्ट, वंडरफुल, एंड द न्यू वर्क कंटिन्यूस एजुकेशन और लर्निंग अडॉप्टेबिलिटी ग्लोबल कोलैबोरेशन. सो ये कोई यूट्यूब वीडियो होगी या कुछ जो वो उन्होंने समरी किया होगा, और उन्होंने फिर उससे मनीष ने जो है उसको उसको बनाया. बड़ा ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच. एंड
This is something shows that you are learning and you are creating something new. ओके, अभी मैं आपको ऐप बनाना सिखाता हूँ। मैंने आपको लिंक भेज दिया है, आप भी ऐप बनाइएगा और मुझे भिजवाइएगा। सबसे आपको पहले आपको उस ऐप को क्लिक करना होगा। अब आपको उसको आइडिया देना होगा कि मुझे किस तरह की जो है वो ऐप बनानी है। आप उसको बोलो कि सपोज आप उसको बोलो कि मुझे टास्क मैनेजमेंट ऐप जो है वो उसको बिल्ड करना है। अब जैसे आपने उसको टास्क मैनेजमेंट ऐप खाली लिखा, अब यहाँ पर ये बिल्ड करने पे लेके जाता है। और अब यहाँ पर जो वो ये बिल्ड कर रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर इसकी कोडिंग लिखना शुरू हो गई है। इस तरफ से ये कोडिंग लिख रहा है, आप देखें इसकी कोडिंग एंड वॉइस एंड टेक्निकल स्किल्स बन रही है। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है वो बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हमने ऐप तो बना दी, मगर हम उसको पब्लिश कैसे करें, हम उसको कैसे लेके जाएं कि भाई ये जो है वो एक पब्लिश्ड ऐप है। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर जो है वो गिट हब के ज़रिए आप उसको सेव करते हैं और वहाँ पर उसको जो है वो आप पब्लिश कर सकते हैं एपीआई के थ्रू। थोड़ा सा टेक्निकल होता है, बट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर सबसे पहले आप उसको सेव करोगे गिटहब पे, पहले आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप उसको पब्लिश कर सकते हो। कुछ इसकी डोमेन की कुछ थोड़ी सी फीस होती है, कुछ डॉलर्स, और फिर बाद में जो है वो आप उसको बना सकते हो। अभी देखिए यहाँ पर पहले तो ये ऐप बनना शुरू होगी, आपकी पूरी ऐप बनेगी, आपकी कोडिंग हो रहे हैं यहाँ पर, आपकी प्रीव्यू है ये, मगर ये कोडिंग पीछे ये कोडिंग चल रही है। आप देखिए कितनी कोडिंग्स जो है वो बना रहा है, खुद कुछ नहीं कर रहा, मैं खुद ही कोडिंग लिख रहा है। और ये देखें यहाँ पर जो वो आपको बोल रहा है माइक्रोफोन अलाउ करूँ, आप बोलते हो हाँ माइक्रोफोन अलाउ कर दो। और अलाउ करने के बाद अब जो है वो आपकी जो है वो एक काइंड ऑफ ऐप जो है वो बन जाती है। लास्ट स्टेज है इसका, ऐप जो वो TXT फाइल में जो वो क्रिएट हो रही है। जैसे ही वो क्रिएट हो जाएगी आप उसका व्यू देख सकते हो। ये देखिए फाइनल ऐप जो है वो आपकी बन गई। अब देखिए ये क्या हुआ है, ये एक टास्क बोर्ड बोर्ड बन गया है। मैंने इसको क्या बोला था, मेरी टास्क की ऐप बनाओ। अब ये एक टास्क बोर्ड है, यहाँ पर आप टास्क क्रिएट कर रहे हो। आप लिख रहे हो कि मेरा न्यू टास्क ये है, मेरा न्यू टास्क है कि मुझे AI सेशंस जो वो कंडक्ट करना है। वर्क मेरा रिलेटेड है या पर्सनल रिलेटेड है, मैं बोलता हूँ ये मेरा पर्सनल रिलेटेड है। और मैं बोलता हूँ प्रायोरिटी क्या है मेरी, मैं प्रायोरिटी बोलता हूँ ये अर्जेंट है। और इसको टू डू लिस्ट में डालूँ या इन प्रोग्रेस में डालूँ, मैं बोल रहा हूँ इन प्रोग्रेस, क्योंकि मैं चलो चल कर रहा हूँ उसको। और इसमें अगर कोई टास्क सब सब जो है वो स्टैक जो मुझे कनेक्ट करना है तो वो मैं कर दूंगा और उसको सेव कर दूंगा। ये देखिए जैसे ही मैंने इसको सेव किया, ये मेरा टास्क जो है वो यहाँ पर आ गया। इस टास्क का वही जो मैंने अभी अभी क्रिएट किया था ये रहा, और ये टास्क जो है वो मेरा क्रिएट हो गया। इसी तरह से यहाँ पर डिफरेंट टास्क आपके कंप्लीटेड इन प्रोग्रेस, उसकी मैंने अभी अभी आपके सामने ऐप बना दी, कुछ भी मैंने नहीं किया, और एक एक जनरल ऐप जो वो बन गई। आप इसी तरह से नंबर ऑफ ऐप्स जो वो बना सकते हैं आपके बच्चे के साथ, आपके साथ। और उसको डिवाइस पे भी आप उसको सेलेक्ट करके, किसी मोबाइल तरीके की डिवाइस हो तो आपको ऐसे दिखेगी, टैबलेट में हो तो ऐसे दिख लेगी। और अगर आप उसको जो है वो करंट स्क्रीन फुल स्क्रीन पे देखना चाहें तो आप इस तरह से उसको देख सकते हैं। कुछ भी नहीं किया, देखिए मैंने 1 मिनट के अंदर एक ऐप बना दी। और आप अपने बिजनेसेस की ऐप बना सकते हो। आप कोई भी CRM अपना छोटा बना सकते हो, मिनी CRM आप बना सकते हैं। आप कोई आइडियाज़ बना सकते हैं, जो आप आइडियाज़ जो बनाना चाहें। आप जब काउंसिल इंस्टीट्यूशन में या कहीं ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हैं, या वॉलंटरी सेवा दे रहे हैं, या प्रोफेशनली कहीं काम कर रहे हैं, तो आप जो वो एक अच्छी सी ऐप बना के लोगों को कर सकते हैं। कुछ भी नहीं किया, मैं वापस से आपको दिखाता हूँ, बहुत ईजी है। ताकि आपको वापस से अगर मैं रिपीट करूँ तो आपको जो है वो आइडिया हो जाए कि मैंने क्या किया। आप सबसे पहले गूगल AI स्टूडियो में आप आएंगे, जो मैंने आपको लिंक भेज दिया है। वहां पर आके आप जो वो यहाँ पर होम पे अगर आप क्लिक करेंगे, होम पे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको बिल्ड AI एप्स जो वो दिखा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्ड AI एप्स, उसको आप क्लिक करेंगे। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको वो बोलेगा क्या AI ऐप बनाओ, आप मुझे बताओ, आप आइडिया दो, डिस्क्राइब योर आइडिया। आप आइडिया बताओ। जैसे अभी हमने टास्क बनाया, मैं अभी यहाँ पर बोलता हूँ एक्सपेंस लिस्ट बना दो, एक्सपेंस शीट। ठीक है, जो एक्सपेंस अपन बनाते हैं उसकी एक्सपेंस की शीट मैंने बोला बना दो। तो मैंने एक्सपेंस की शीट बोला बना दो, वो एक्सपेंस की शीट बना रहा है। अभी यहाँ पर वो कोड जनरेट कर रहा है, इस तरफ देखें आप कोड जनरेट कर रहा है। और यहाँ पर ये आपको प्रीव्यू देगा कि आपको किस तरह से पब्लिश कर सकते हो गिटहब पे, और किस तरह से। और यहाँ पर यहाँ इसके कोड लिख रहा है, मगर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने आइडिया दे दिया, आप हाथ उठा लो, वो खुद ही बना के आपको पूरा रेडी करके, पूरा खाना बना कर आपको जो है वो बिरयानी आपको बना के दे देगा। एंड देन यू कैन यूज इट, यू कैन पब्लिश इट, यू कैन यूज इट एनीवेयर यू वांट, एंड यू कैन एक्चुअली शेयर दैट आइडिया ऑल्सो विद एनीवन। और ये बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि हम इसको शेयर कैसे करें, कैसे होता है शेयर। यहाँ से जो वो शेयर का ऑप्शन है, ये देखें ये भी बनी नहीं है, जैसे ही बन जाती है तो ये शेयर का ऑप्शन, शेयर ऐप जो है वो यहाँ पर ऑप्शन आता है ऊपर, अगर आप देखें ये वाला, तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये शेयर जो है वो हो जाएगी।
अभी ये ऐप हमारी बन गई है। ये देखें एक्सपेंस हमने बना दी शीट। फुल स्क्रीन करता हूँ। ये देखें पूरी न्यू ट्रांजैक्शन मेरी क्या है, मेरे टोटल स्पेंडिंग क्या है, मेरे वीकली स्पेंड क्या है। मैं अपनी ऐड एक्सपेंसेस यहाँ पर करता जाऊँगा, एनालाइज करूँगा और मेरे पूरे एक्सपेंसेस को जो है वो एनालाइज करेगा। डैशबोर्ड है। ट्रांजैक्शन वाइज अगर देखना चाहूँ तो डेट, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, अमाउंट, ये सारी चीज़ें जो मेरी आ गई। आप देखिए, आप आपने नोटिस किया मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी, क्रिएट एन एक्सपेंस रिलेटेड शीट। अब ये एक्सपेंस रिलेटेड शीट बना दी। आप कुछ भी इसके अंदर अगर अच्छे से अगर कोई आइडिया लिखते हैं तो आपका बड़ा अच्छे से जो है वो उसको आइडिया वो बना सकता है। ओके, वंडरफुल। तो दिस इज गूगल एआई स्टूडियो फॉर यू। आप इसके अंदर चैट मॉडल्स भी कर सकते हैं। ये देखिए चैट चैट मॉडल्स, आप मॉडल्स के साथ जो है वो चैट कर रहे हैं। खुद ही वो पूरा स्टूडियो आपको, उसने नैनो बनाना को क्रिएट कर दिया, उसने फ्लैश को क्रिएट किया और आप स्टूडियो उसके साथ जो है वो चैट कर रहे हैं। आप जो है वो कोई भी मॉनिटर्स एपीआई जैसे मैंने आपको बताया था वो आप यहाँ पर बना के जो है वो उसमें बना सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके, एक फाइनल है अपना फायर बेस स्टूडियो। फायर बेस स्टूडियो जो है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये रहा। अच्छा, ये एक शायद आपके लिए नया होगा, पहले आपने यूज़ नहीं किया होगा, स्टूडियो फायर बेस। ये भी गूगल का ही है और मैं आपको इसका लिंक भी भेज देता हूँ। लेट मी सी ऑल्सो फ्यू थिंग्स पीपल हैव क्रिएटेड। यहाँ पर कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें बनाई है, मैं देखता हूँ क्या बनाया। ओके, और सो नो एक्सेस। आप एक्सेस आपको देना पड़ेगा, जो आपने ऐप बनाई है उसका आपको यहाँ पर एक्सेस जो है वो देना पड़ेगा। फिर जो है वो मैं उसको स्टार्ट करके यूज़ कर सकता हूँ। बट थैंक यू, आपने बहुत अच्छे कुछ ना कुछ तो बनाया होगा, आई एम श्योर। एक और चीज़ देखते हैं, यहाँ पर कुछ बनाई है, इसका भी एक्सेस नहीं है। फायर स्टूडियो तो मैंने भेजा है। जेमिनाई पे कुछ किसी ने कुछ ऐप बनाई है, कुछ बनाया। ओके, वंडरफुल। ओके, जेमिनाई, ये तो सिर्फ जेमिनाई का लिंक है मगर कुछ है नहीं इसके अंदर। और क्या है, कैन यू पब्लिश द ऐप ऑन द लोकल कंप्यूटर ओनली? यस, यू कैन पब्लिश दैट ऐप ऑल्सो ऑन द लोकल कंप्यूटर, मगर उसमें आपको गिट हब में जो है वो करके आपको ऐप करना पड़ेगा और आपके पास वो फाइल जो है वो बनकर आपके पीसी में जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद फिर आप उसको ऐप को जो है वो लोकल पीसी में यूज़ कर सकते हो। बट पब्लिश करने के लिए आपको गिट हब में जाके उसकी जो है वो परचेज करना पड़ेगा। आई हैव क्रिएटेड दिस ऐप फॉर चिल्ड्रन नर्सरी सॉन्ग। ओके, लेट्स ओपन दिस वन। एक्सेस आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज मैं ओपन नहीं कर पा रहा हूँ आपकी एप्स, मगर यहाँ पर मैं क्लिक करके देखता हूँ, शायद यहाँ हो जाए। ओके, या कंटिन्यू टू ऐप। सो ये देखिए, ये किसी ने बच्चों की जो वो स्क्रिप्ट, नर्सरी राइम्स और उसकी कुछ बनाई है। जनरेट मैजिक स्क्रिप्ट, रेडी टू प्रोसीड। सो मैं इसको प्ले करता हूँ। बड़ा अच्छा किसी ने कुछ बनाया, यहाँ पर देखिए फुल स्क्रीन कर दें हम। बीबो स्क्रिप्ट फैक्ट्री, सो दिस इज समथिंग जनरेटिंग। अब ये देखिए, ये अभी मैंने बताया और आपने इतना अच्छे से जो बना दिया। आप सोचें अगर आप आराम से बैठ के एक थॉटफुल ऐप बनाएंगे तो कितनी ज़बरदस्त जो है वो ऐप बनेगी। आप देखिए, आपको मैंने आज ऐप बनाना सिखा दिया। वेबसाइट तो बड़ा इजी होता है, वैसे ही जो है वो गामा और उसमें ऐप भी बन जाती है, वेबसाइट भी बन जाती है। ऐप बनाना इज ऑल्सो ईजी, इज़ नॉट डिफिकल्ट। यू कैन एक्चुअली क्रिएट दिस काइंड ऑफ थिंग्स एट योर ओन। और भी मैं देखता हूँ यहाँ पर किसी ने कुछ और भी भेजा है। पीपल आर क्रिएटिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो। आप खुद ही जो है वो चीज़ें बना रहे हो और बड़े अच्छे से कर रहे हो। यहाँ पर एक दूसरी ऐप को हम क्लिक करते हैं, कंटिन्यू विद द ऐप, अलाउ। अब यहाँ पर किसी ने फाइनेंशियल ओवरव्यू बनाया, पूरा डेटा का एक एक ओवरव्यू बनाया। एक्सीलेंट आइडिया। आपके पास बहुत सारी मल्टीपल शीट्स होती हैं, आप उसको यहाँ पर डाल सकते हो और मल्टीपल शीट्स को आप उसका डेटा जो है वो विजुअल उसको क्रिएट करना हो तो आप कर सकते हो। एक डैशबोर्ड बना सकते हो, इनसाइट्स कर सकते हो उस रिपोर्ट की, या उस रिपोर्ट्स की रिपोर्ट बनाना हो तो वो भी आप जो है वो बड़ा अच्छे तरीके से बना सकते हो। एंड यू हैव अ फ्री, दीज आर फ्री टूल्स एंड यू कैन एक्चुअली यूज देम वेन एवर यू वांट। ओके, सो वी वर बी ओके, सो वी वर एट द फायर बेस स्टूडियो। अभी आप बनाइए नहीं, अभी आप यहाँ पर फोकस करें, अदरवाइज आप जो है वो मैं जो नई चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद आप मिस कर देंगे। तो फायर बेस स्टूडियो, प्लीज़ आप यहाँ पर देखें।
फायरबेस स्टूडियो में आप कुछ भी जो है वो यहाँ पर एक अपना आइडिया लिख सकते हैं, वो भी उसी तरह से ही एक आइडिया बनाएगा। मैं इसके यहाँ पर अगेन करता हूँ टास्क मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट काइंड ऑफ एंड प्रोटोटाइप मैंने उसको दिया, आइडिया दिया। अब उस आइडिया को जो वो उसने उसको जनरेट किया और जो वो उसको बनाना शुरू करेगा, और उसके भी पब्लिश हम कर सकते हैं। और आप देखें इसके कितना अच्छे से जो वो उसकी टास्क मैनेजमेंट जो वो उसने पूरा बनाया, क्रिएट किया, प्रोटोटाइप बना रहा है। और फिर प्रोटोटाइप में इसको ऐप में अगर जाता हूँ तो ये अब मुझे उसको दिखाएगा कि मुझे उसको यस प्रोटोटाइप ऐप बनाना है। इसकी ट्रांसक्रिप्ट कर रहा है, पूरी इसकी चीज़ें बना रहा है और टास्क वाइज चीज़ें बना के मुझे उसको बना के दे देगा। मैंने कल एक चीज़ बनाई थी इसमें, अगर इसका स्टूडियो मुझे नज़र आया है। ओके, नहीं है। अब ये देखिए टास्क वाइज पूरी जो वो एक ऐप बना रहा है, ये टास्क बेस्ड जो वो एक पूरा एआई स्टूडियो आपको लेके आता है और आपकी पूरी चीज़ें बनाता है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसके अंदर, बट जैसे ये हो जाता है तो फिर आप इसको पब्लिश करते हो। तो पब्लिश करने के बाद ये पूरी ऐप आपकी एक ऐप बनाएगा, बिल्डिंग गूगल क्लाउड उसकी बिलिंग जो वो आपकी बनाएगा और आपको इनेबल कर देगा वो सर्विसेज को, और आप इसकी इन सर्विसेज जो है वो यूज़ कर सकते हो। इसको बोलते हैं फायर बेस स्टूडियो। और फायर बेस स्टूडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अच्छे से कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगाता है ये क्रिएट करने में। हम जब तक दूसरी चीज़ें करते हैं तब तक हम वापस से यहाँ पर आते हैं और आप इसकी चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको लास्ट टाइम गूगल जेमिनाई में बहुत सारी चीज़ें जो वो बताई थी, जो कि आई एम श्योर आप लोगों ने यूज़ की होगी। बट हाउ मेनी ऑफ यू इज अटेंडिंग दिस इज द फर्स्ट सेशन, लाइक दे हैव नॉट डन दिस सेशन अर्लियर? सो मे बी यू कैन से यस और नो। सो इफ़ यू हैव नॉट अटेंडेड माई सेशन अर्लियर, जो मैंने गूगल जेमिनाई के बारे में थोड़ा स्टोरी बुक्स बनाने के बारे में बताई थी एंड ऑल दैट, इफ़ यू हैव नॉट अटेंडेड देन जस्ट से नो, इफ़ यू हैव अटेंडेड देन जस्ट से यस. Okay, so no, no, no. We have a lot of no. Okay, no. Okay, we have a lot of no's here. Okay, no worries. So even if it is one, we can go ahead and do some refresher over there again. और जो जिसने पहले भी अटेंड किया था उसके लिए भी रिफ्रेशर होगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस थे, मैं एक मिनट उसको देख लेता हूँ। So Manish, I'm already using this app, and this is, was already built and many apps from the different in YouTube and connections. Wonderful. It might take some time, so we'll in the early and things and content creation alongside with the song. Yes, it will definitely. You can keep creating, and then Manish, you can help, others also. I know that you are already, very good expert in this AI one. सबसे पहले जेमिनाई में आपको थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूँ, अगर जिसने पहले यूज़ नहीं किया। जेमिनाई इस सबसे पहले आप उसको जेमिनाई लिखोगे, GEMINI। जेमिनाई जो है वो आपका एक गूगल का है, जेमिनाई AI आप लिख लेना गूगल पे जाके, और आपको जेमिनाई पे लेके जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर गूगल जेमिनाई आपको नज़र आएगा, उसको क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे तो वो आपसे एक जो है ना आपसे लॉगिन मांगेगा। आप लॉगिन यहाँ से कर देना। ये मैं जो यूज़ कर रहा हूँ फ्री वर्जन कर रहा हूँ, मेरे पास प्रो भी है, बट मैं आपको फ्री वर्जन करके दिखा रहा हूँ ताकि आप जो हो जब फ्री यूज़ करोगे तो वही चीज़ दिखेगी जो मेरे पास दिख रही है यहाँ पर। यहाँ पर आप लॉगिन कर देना। लॉगिन करने के बाद अगर आपके पास ऑलरेडी गूगल लॉगिन है तो कोई इशू नहीं है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर लॉगिन कर लेना। और लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से पेज दिखेगा, और यहाँ पर आपको बोलेगा वेयर शुड वी स्टार्ट एंड ऑल दैट। तो यहाँ पर जो वो आपका ये प्रॉम्प्ट होता है, ये आपसे आस्क जेमिनाई 3, मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि क्या करना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि मुझे ये बना के दो, क्रिएट दिस एंड क्रिएट दैट। यहाँ पर आपको वो बनाने के लिए आपको लिखना पड़ता है। यहाँ पर ये टूल्स होते हैं, आप यहाँ पर डीप रिसर्च कर सकते हो। डीप रिसर्च जब आप क्लिक करते हो तो आप कोई फाइल अपलोड कर सकते हो या रिसोर्स के लिए कर सकते हो, या आप कोई अपना आइडिया, अगर आपका कोई भी आइडिया है तो वो आप जो है वो यहाँ पर डाल सकते हो। इसी तरह से सेकंड जो है वो क्रिएट इमेजेस, जो मैंने आपको बोला था नैनो बनाना जिसको बोलते हैं। तो आपने क्रिएट ये इमेज, क्रिएट वो इमेज आपने बोल दिया तो वो आपको क्रिएट इमेज जो है वो बना के दे देगा। थर्ड जो है वो आपका कैनवस। कैनवस इज एक्चुअली काइंड ऑफ एप्लीकेशन, वो बनाता है, ऐप बनाता है या वेब पेज बनाता है, वो पूरी आपको चीज़ें बना के देता है। मैं अभी आपको सिर्फ नेविगेट करके दिखा रहा हूँ, फिर आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये करते कैसे हैं। गाइडेड लर्निंग, अगर आपको कोई भी चीज़ नई सीखनी है, अच्छे से सीखनी है, तो आपको क्विज बनाएगा, फ्लैश कार्ड्स बनाएगा, और गाइडेड लर्निंग की तरह जो है वो आप उसको
सीख सकते हैं। एंड देन विजुअल लेआउट्स, आपको कोई भी चीज़ अगर विजुअल्स में लेके आनी है तो वो आपको बना के दिखाएगा। अब हम उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर साइड पे अगर आप देखें तो इसके जैम्स दिखा रहा होता है। इस जैम्स के अंदर भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको दिखाएगा जैम मैनेजर, और यहाँ पर आप शो मोर कर दीजिएगा तो आपको यहाँ पर बहुत सारे जैम्स दिखाएगा। इसमें एक जो जैम्स है वो बड़ा अच्छा है, जो कि है स्टोरी बुक। ये देख रहे हैं आप, स्टोरी बुक। स्टोरी बुक को आप क्लिक कीजिएगा, आपको स्टोरी बुक के जैम्स में लेके जाएगा, और आप फिर यहाँ पर कोई भी स्टोरी बुक का आइडिया देके स्टोरी बुक, लिटरली स्टोरी बुक जो है वो आप बना सकते हो, बुक की तरह होगी, और जो आप बना सकते हैं। अभी हम यहाँ पर लिखते हैं क्रिएट स्टोरी, स्टोरी बुक ऑफ, कोई भी आप अपनी किसी डॉटर का या किसी अपने सन का किसी का नाम अगर आप मुझे दें प्लीज, चैट में आपके बच्चे का नाम और उसकी एज जरूर लिखिएगा प्लीज। ओके, सो वेज एंड 14, ओके, he is 15 years old. And what does Wes likes actually? कोई बता सकते हैं आपको वेस को क्या पसंद है? इसने वेस सबसे पहले जो वेस ये आया था, एस वेस पोपटिया। ओके, रोबोटिक्स। ओके, सो ही लाइक्स, ही लाइक्स रोबोटिक्स। आई बिलीव ये वेस ही है जिसने ये लिखा है, बट वी आर नॉट श्योर। सो ये अभी आप देखें स्टोरी बुक बन गई। वेज ही इज़ 14 ईयर्स ओल्ड एंड अगेन ही लाइक्स रोबोटिक्स। सो अब ये इसकी एक स्टोरी बुक्स बनेगी, और स्टोरी बुक्स जो वो बना के पूरी जो है वो एक आपको क्रिएट करके दे देगा, जिसमें स्टोरी बुक्स आप देख सकते हैं कि उसको आप रीड कर सकते हैं, आप उसको जो वो लिसन कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं उसको। एंड देन यू कैन इवन शेयर दैट स्टोरी बुक, यू कैन इवन जनरेट दैट स्टोरी बुक इन अ वे the story book is generated, and you can also make sure that you can do it. Okay, someone is talking. ये स्टोरी बुक जनरेट हो रही है, हम देख रहे हैं। एक आध मिनट इसकी लेता है स्टोरी बुक जनरेट करने में, और फिर आपको पूरी स्टोरी बुक जनरेट करके देगा मिस्टर एराज। बच्चे आते हैं ना स्क्रीन पे, फिर वो ऐसा करते हैं। ओके, सो वी कैन सी द स्टोरी बुक विल बी जनरेटेड इन 1 or 2 minutes। जब तक जो ऑलरेडी जनरेटेड स्टोरी बुक है मैं वो आपको दिखा देता हूँ, जो हमने पहले जनरेट की है। ये देखें, एक हमने स्टोरी बुक जनरेट की थी रिसेंटली, द रेनी डे किंगडम। ये हमने देखें यहाँ पर दो बच्चों की जो वो की थी। ये अभी रिसेंटली जो वो एक बच्ची ने इसको बनाया था, वो खुद जो है वो, उसकी बहन का नाम सनाया है और उसका नाम जो है वो इनाया है, और उन दोनों ने जो वो ये दोनों बुक्स बनाई थी, बच्चों ने बनाई है ये एक्चुअली। और यहाँ के बच्चे जो वो बड़े तेज़ हैं, यहाँ पर देखें उसने पूरी जो है वो बुक बनाई, ये कवर पेज है, और इसको आप लिसन भी कर सकते हो। ये देखें, The sky was the color of a dusty chalkboard, and heavy raindrops tapped a rhythm against the glass. Sanaya pressed her nose to the window, watching the puddles grow in the garden. 10 पेजेस की ये बुक होती है। मैं इसको यहाँ रोक रहा हूँ, और आप इसको पूरा जो है वो बना सकते हैं अपने बच्चों का, दो बच्चों का बना के दे सकते हैं। दोनों बच्चे जो है वो उसको सोचें, जब उसको सुनेंगे तो उनको कितना मज़ा आएगा। इसी तरह से आप किसी भी लैंग्वेज में भी बना सकते हैं बाय द वे। ये देखिए, हमने एक अंगोला के सेशन में हमने बनाई थी, और एक डॉटर जियाना जो है वो उसने बनाई थी, वो शी लाइक्स डांसिंग। और फिर हमने इसी बुक को जो है वो कन्वर्ट किया था पोर्चुगीज में। आई थिंक वहाँ पोर्चुगीज चलती है, तो पोर्चुगीज लैंग्वेज में हमने इसको कन्वर्ट किया था, और आप सुने। O ritmo do coração de Ziana. Ziana acorda cedo. O sol entra pela janela e ela já sente o ritmo nos pés. Para ela, o mundo आई एम श्योर आप में से जिसको पोर्चुगीज आती होगी वो समझ रहा होगा उसको। सो हम किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हैं, हिंदी, उर्दू, गुजराती। आप अपने एल्डर्स के लिए भी कोई स्टोरी बुक बना सकते हैं। ये स्टोरी बुक बनाने के बाद आप यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप किसी भी प्रिंट शॉप में जाके
उसको बुक फॉर्मेट के अंदर प्रिंट करवा सकते हैं। अगर नहीं तो आप यहाँ पर उसको शेयर भी कर सकते हैं। आपने ये लिंक को क्लिक किया, आपने लिंक को कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं जाके एक पेस्ट करता हूँ, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि आप जो है वो ये बना सकते हैं। किसी ने शायद ऑलरेडी एक बुक बनाई भी है, हम देखते हैं क्या बनाया। वाह, सो यू कैन सी ऑलरेडी अ लिटिल गार्डनर इन द गोल्डन वेस्ट। सो यहाँ पर एक किसी ने जो है वो वेस्ट ने ऑलरेडी जो है वो एक बुक बनाई भी है। एंड देन यू कैन इवन लिसन दिस The बुक। little gardener in the golden vest. In the middle of a sun-drenched garden, Wonderful. So you can actually create these kind of story books. Is very easy and it's very creative. यहाँ पर जो हमने बनाया था ये भी बन गया, वैस का भी बन गया। ये 14 years old and he likes robotics. So ये आप देखेंगे, ये वैस का जो बन गया 14 years old। अच्छा, यहाँ पर दिखा रहा है ना बाय फहीम अली, क्योंकि ये मेरा गूगल का अकाउंट चल रहा है। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर लिख के नीचे illustrated by so and so, and it will write also the person's name। आप देखें यहाँ पर पूरा जो है वो उसने स्टोरी बना दी है, हम उसको सुन the सकते regional हैं। robotics competition was only 2 weeks away, and the challenge was daunting. एंड हम उसको जो है वो अच्छे से उसको यूज़ भी कर सकते हैं। सो ये आजकल के बच्चे जो है वो उसको बड़ा यूज़ करते हैं। इसको जो है वो हमें यूज़ करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। स्टोरी बुक्स और बुक्स रीडिंग, इमाम हैव आल्सो सेड अ लॉट ऑफ थिंग ऑन अस दैट हमें इसको पढ़ना चाहिए, और हम खुद स्टोरी बुक्स बना के जो है वो बच्चों को दे सकते हैं, तो वो उसको बना के उसको पढ़ भी सकते हैं। एंड आप इमेजिन करें कि अगर आप किसी को पर्सनलाइज बुक अगर किसी को देते हैं, किसी के नाम पे बुक होती है। देखिए, ये एक वैस के नाम पे बुक है, और वैस का नाम आ रहा है, और वैस जैसा अगर आप फोटो डालना चाहे वैस का, तो वो भी यहाँ पर फोटो भी उसका कुछ ना कुछ रिजेंबल करेगा उसमें, और जो आप उसको अच्छे से उसको फोटो भी बना के उसको कर सकते हैं। सो दिस इज अगेन अ लर्निंग जेम्स फॉर यू। एक मैंने आपको दिखाया स्टोरी बुक्स, आप ज़रूर बनाइएगा जब भी आपको टाइम हो। उसके बाद एक यहाँ पर एक और आ रहा है लर्निंग कोच। ये भी बहुत अच्छा है लर्निंग कोच। लर्निंग कोच में क्या है कि आप कुछ भी चीज़ जो है वो अच्छे से सीख सकते हैं। सपोज आप अपने बच्चे के साथ कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं। अज्यूम आपके छोटे बच्चे हैं 6 साल के, 5 साल के, आप उनके साथ साइट वर्ड सीख रहे हैं, तो आप क्विज बना सकते हैं, आप कुछ भी चीज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसी की चीज़ है वो मैं उसको करता हूँ। व्हाट इज़ बाइनरी नंबर अज्यूम। अब ये मैंने उसको, अब ये जो है ना, आपको इस तरह से नहीं है कि आप उसको क्वेश्चंस पूछोगे आपको आंसर दे देगा। ये आपके लिए प्लान बनाएगा, लर्निंग प्लान पूरा बनाएगा कि आप ये बाइनरी नंबर अगर सीख रहे हो, तो आपके लिए पूरा प्लान बना के आपको जो है वो उसमें चीज़ें जो है वो बना के देगा। अब ये पूरा प्लान बना रहा है, फॉर्मुलेट कर रहा है, एक पूरी स्ट्रक्चर बनाएगा, और फिर आपको जो है वो क्वेश्चन आंसर के जरिए आपका लर्निंग प्लान बनाएगा। कि आपको लर्निंग प्लान आपका पहले मैं बेसिक सिखाऊंगा, फिर आपको प्लेस करूंगा, फिर आपको रिकॉर्डर विंग करूंगा, फिर आपको ये करूंगा। स्टेप 1 आपका बेसिक है, तो आपका ऑन एंड ऑफ जो वो होगा, और फिर आपका इस तरह से होगा, फिर आप उसको बोलते हो यस आई एम रेडी। ठीक है, जैसे आप उसको बोलते हो, तो फिर वो आपको आगे आगे चीज़ें स्ट्रक्चर करना शुरू कर देता है, और आपकी चीज़ें जो है वो बनाना शुरू कर देता है। अब आपको बोलता है क्लू क्या है। अब देखिए यहाँ पर वो आपसे सवाल पूछ रहा है। बहुत सारे मॉड्यूल्स या चैट जीपीटी पे क्या होता है कि आप चीज़ें व्हाट इज बाइनरी नंबर, तो वो आपको बोलता है बाइनरी नंबर इज दिस 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 दिस, एंड आप जो वो डन हो जाते हो, आप रीड करके खत्म करें। यहाँ पर वो आपसे सवाल पूछ रहा है, एज अ टीचर की तरह आपको गाइड कर रहा है, लर्निंग कोच आपका बनता है। और इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी वो बनाता है, मैंने यहाँ पर बनाई भी हैं शायद फिजिक्स के हवाले से अगर मैं देखूँ। ये देखें, यहाँ पर मैंने देखें, इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया था, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इस फिजिक्स के जो वो पेज को डाला था, व्हाट इज फिजिक्स एंड ऑल दैट, इस इमेज को डाला था। आई वांट टू लर्न दिस टॉपिक, ओके, दिस टॉपिक विच इज कॉल्ड व्हाट इज फिजिक्स डेली यूज इन लाइफ एंड ऑल दैट। उससे पहले उसको लर्निंग कोच को थिंक किया, फिर मैंने उसको बोला आई वांट टू लर्न ऑल ऑफ देम, और फिर उसके बाद उसने उसकी रिडल बनाई। फिर उसके बाद मैंने उसको बोला कि कैन यू क्रिएट द इन्फोग्राफिक फॉर मी टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। फिर उसने मुझे ये इन्फोग्राफिक बना के दी, जो आप ये देखें ये बन गई है, ऑलरेडी बनी हुई है, इसलिए मैं आपको क्विकली दिखा रहा हूँ, वरना ये बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा था। और ये देखें फिजिक्स अनफोल्डेड। अब ये उसने व्हाट इज फिजिक्स, लॉज ऑफ नेचर, स्केल ऑफ फिजिक्स, साइंटिफिक पाइनियर जो वो किस तरह से वो बनते हैं, पूरी जो वो उसने बना दी। अब मैं यहाँ पर उसको एक और भी चीज़ लिखता हूँ, अभी इसके आगे वो लिख रहा हूँ, ओके। मैं इसको बोलता हूँ कि कैन यू क्रिएट दी फ्लैश कार्ड्स फॉर मी टू बेटर अंडरस्टैंड, ओके। अब मैंने इसको बोल दिया कि मुझे कोई फ्लैश कार्ड्स बना के दो, जिससे मैं थोड़ा और मज़ीद जो अंडरस्टैंड करूँ। अब देखिए, ये फ्लैश कार्ड्स बना रहा है, उसकी ऐप बना रहा है, उसकी जो है वो एक इन्फोग्राफिक कोडिंग बना रहा है, और पूरे फ्लैश कार्ड्स जो है वो बन जाएंगे। ये देखिए बन गए। अब मैं बोलता हूँ
व्हाट इज द स्टडी ऑफ फिजिक्स। अब ये मैं एक उसकी क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास पीछे इसकी वो आ जाएगा, आप देख रहे हैं। मैंने इसको क्लिक किया, व्हाट इज द स्टडी ऑफ फिजिक्स। मैंने इसको क्लिक किया, ये डेफिनेशन आ गई, कॉन्सेप्ट, व्हाट आर द लॉज ऑफ नेचर। अब ये सवाल आ गए और उसके पीछे फ्लिप कार्ड्स हो गए। अब मैंने बोला लॉज ऑफ नेचर क्या है, मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ मुझे पीछे लॉज ऑफ नेचर जो है वो नजर आ गया। हिस्ट्री में अगर चला जाता हूँ, what is known as a father of optics, I'm not sure, so click, then it will be called Imam al Haytham, is the father of the visions and all that. So यहाँ पर आप देखें पूरा जो वो who was the first Pakistani scientist to win the Nobel Prize in history. So Dr. Abdus Salam, for his work in theoretical physics electric weak, was the first Pakistani scientist on this one. So अभी मैंने तो नहीं बोला उसको, पाकिस्तानी खुद ही आ गया वो। और ये खुद ही जो वो देखें सारी चीज़ें जो कर, अब आप उसमें कुछ भी चीज़ें लिखें तो ये पूरी चीज़ें जो वो बना के आपको फ्लैश कार्ड्स बना सकता है। अभी मैं इसको देखें यहाँ पर इसको बंद करता हूँ और मैं यहाँ पर इसको बोलता हूँ कैन यू क्रिएट द क्विज फॉर मी टू बेटर अंडरस्टैंड। अब ये क्विज बनाएगा, अब ये इसके डेफिनेटली क्विज बनाएगा, 10 क्विज बनाएगा। आप इसके लर्निंग कोच में इसके क्विज जो आप देखिए, एक ही टॉपिक को हमने लिया है फिजिक्स, और फिजिक्स को कितना अच्छे से वो समझा रहा है। आपके पास एक लर्निंग टूल है, आपके पास एक टीचर है, आप समझ लें, जो आप उस टीचर को अच्छे से जो वो यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए, आप खुद भी और आप अपने बच्चों के साथ भी अगर उसको करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पर आ गया चेक योर नॉलेज। So physics is the primary study for matter of energy, plant, animal, chemical reaction, their interaction और history के बारे में, action history के बारे में। So आप बताएं क्या होगा, ऑप्शन A, B, C और D, कौन बताएगा? देखें चैट में क्या आता है, ऑप्शन A, B, C और D, who will give this answer? So physics is primarily the study of matter of energy and plant and animals or chemical reactions, their interactions और एक्सचेंज हिस्ट्री। कौन बताएगा? बी, ओके, केमिकल रिएक्शन, आई गेस बी, बी। So I got 3 answers, B, 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 Alia is saying B, Wes is saying B, and then we have Sunita who's saying B also, so almost B, okay. Someone is saying C also, so let's try C, okay. So their interaction, अगर हम C को क्लिक करते हैं तो वो एक्चुअली सही आंसर है। Yes, it's interactions, is matter, energy and their interactions, not chemical. Chemical physics में नहीं होता, chemical जो है वो केमिस्ट्री में होता है। सॉरी, मैं भी थोड़ा टीचर पहले रह चुका हूँ तो मैं अपनी जो वो यहाँ पर ट्यूशन्स चला रहा हूँ, बट इट्स जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग। आप देखें हम सब सोच रहे थे कि केमिकल रिएक्शंस है, बट इट्स देयर इंटरेक्शंस है। अगर मैं इसको क्लिक करता तो वो मुझे बोलता कि नहीं ये गलत आंसर है, और जो है वो आपको सही आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, आर यू रेडी? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज what do we call the consistent rules that the universe follow? What do we call the consistent rules that universe follow? Law of physics, law of nature, the game of rules, or the universal suggestions? What do you think? A, B, C, or D? Please give your answer. Okay, so law of nature, B, A, okay. देखिए कितना मजा आ रहा है खेलने में, राइट? A, Ali Khan is saying A, okay. Alia Atif is saying A. Aris is saying A, okay. Noman is saying A. And then again, Himani is also saying A. Okay, let's see what is the answer. So, physics of law, okay. तो अभी मैं खुद गलत कर रहा हूँ उसको, मैं the game rules कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो वो मुझे बोल रहा है नहीं, the game rules नहीं है, not quite. The textbook call is the law of nature, pattern that scientifics, unfold. And it's also not A, by the way, law of physics. There's no law of physics, it's law of nature. Law of nature होता है ना कि आप कुछ ऊपर फेंकते हो तो नीचे आता है। It's a law of nature. That's where it is identified in physics, not the law of physics. अब सॉरी, मैं यहाँ पर फिजिक्स सिखाना आपको शुरू कर दिया है, बट पॉइंट मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखिए कितना मजा आ रहा है हमें। कोई भी आपने एक टॉपिक दिया और आपने उसकी चीजें जो है वो कितनी अच्छे से बनाना शुरू कर दी गाइडेड कोचिंग लर्निंग में। आप बच्चों के साथ ये एक्टिविटीज़ जो है वो घर में खेल सकते हैं। जमात खाने में आप कुछ जो है वो बच्चे बोर हो रहे हैं बैठ के, आपने जो है वो उनको बिठा दिया और एक कोई चीज़ कर दी, और किसी भी एज के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखें, मैं जब भी लिखता हूँ तो मैं इसमें ज़रूर लिखता हूँ कि ये मैं बनाना चाह रहा हूँ मेरी बेटी के लिए लर्निंग कोच,
एंड शी इज 7 years old और 6 years old और 5 years old, तो उसमें फिर उसको पता होता है कि क्वेश्चंस और आंसर किस तरह से लेके आने हैं उस एज के हिसाब से। अदरवाइज अगर आप जो है वो उसको ऐसे जनरली बोलेंगे तो फिर वो एक जनरल जो है वो चीज़ें बनाना शुरू कर देगा। तो एज बच्चे की आप ज़रूर बताइएगा। आप अगर खुद हैं तो आप अपनी एज बता सकते हैं, रफली एज बताएं, ज़रूरी नहीं है पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं बताने की ज़रूरत है आपको, रफली आप एज एज बता सकते हैं। तो आप जो है वो उसमें चीज़ें, अब यहाँ पर जैसे मैं बोलूँ कि मुझे साइड वर्ड्स, आई वॉन्ट टू लर्न साइड वर्ड्स with my daughter and she is 7 years old। ओके, अब ये साइट वर्ड्स की जो वो चीज़ें लर्निंग मुझे करना शुरू करेगा। साइट वर्ड्स होते हैं ना, जिस तरह से आप द ए एन वांट द कुड और जो सारी चीज़ें लगती है इस लाइक इज एन ऑफ, वो सारी चीज़ें जो वो साइट वर्ड्स बनाएगा। अब ये एग्जैक्टली मुझे पूछ रहा है कि आपको क्या बनाना है, रिडल्स बनानी है, क्या करूँ मैं, गेस बोला क्या बोलता हूँ मैं, अभी इसको बोलता हूँ कि क्रिएट फ्लैश कार्ड्स। आप ये देखें फ्लैश कार्ड्स बनाएगा उसके साइड वर्ड्स के, और बड़े अच्छे से जो वो बना के आपको जो बनाएगा बना के देगा, और आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, उसको जो वो चीज़ों को बना सकते हो। अब ये देखें इसकी फ्लैश कार्ड्स बना रहा है, कैट दैट द, एंड आई विल से ऑल ऑफ देम। ओके, अब ये बनाना शुरू करेगा, फ्लैश कार्ड्स बन रहे हैं, और फ्लैश कार्ड्स हम अपने बच्चे के साथ यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ जो है वो बहुत अच्छे से लर्निंग हो सकती है। कोई भी ऐसा टॉपिक हो, आपके बच्चे आपको बोले कि मुझे किस तरह से करना है कॉमन, मैं लर्निंग मुझे समझ में नहीं आ रही, तो आप उसको ये फ्लैश कार्ड्स या क्विज बना के आप उसको कर सकते हैं। सो आई थिंक वी आर रनिंग लेट, देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग इन दिस गूगल जेमिनाई, वी कैन कीप ट्राइंग all of these things and you will learn so many good things over there। Let's go back again to our presentation। पोमिला, नाम ही बड़ा अच्छा है, पोमिला, पोमिलिटी से इस तरह से कुछ नाम है इसका। मैं आपको उसका दिखाता हूँ, ये रहा। तो इसमें जो है वो सबसे पहले कि ये ना बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करता है। मैं इसकी वीडियो ही दिखा देता हूँ आपको। अगर आप इसमें देखो कि ये क्या करता है कि 4-5 चीज़ों को, स्पेशली आपके बिजनेसेस के फ्लायर्स मेन्यूज़ अगर आपको बनाने हो, आपकी एप्लीकेशंस आपको बनानी हो, तो वो आपको जो है वो मैं एक दूसरी ऐप पे आ गया हूँ, वो आपको बना के दे सकता है, डिज़ाइन बनाता है उसका, पूरी कैंपेन बना सकता है, और आपको उसको बड़ा इजी तरीके से, फ्री है ये, और इसको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे सपोज़ कि यहाँ पर एक आपने बॉक्स बना दिए, आपने आपका प्रोडक्ट है, आपने प्रोडक्ट को उठा दिया, आपने उसको एडिट करना शुरू किया, आपने बोला कि इसको अपग्रेड टू द दिस कर दिया, उसके अंदर बीच में इमेज जो है वो आपने चेंज कर दिया, आपने बोला ये इमेज नहीं, बैकग्राउंड इसका ये नहीं, ये होना चाहिए, और उसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो जाएगा, और बॉक्सेस की तरह जो है वो रेडी हो जाएगा, और आप उसको जो है वो किसी भी अपना उसको सेल कर सकते हैं। मोबाइल फॉर्मेट में आ सकता है, किसी भी फॉर्मेट में अगर आप उसको चाहें तो वो आपको बना सकता है। तो उसको पोमिली जो वो गूगल लैब्स में जो वो वन ऑफ एन एप्लीकेशन है, जो कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसका है, यहाँ पर आप उसको गेट स्टार्टेड कीजिएगा। स्टार्ट करने के बाद, सॉरी, स्टार्ट करने के बाद वो आपसे एग्रीमेंट करेगा, आप उसको एग्रीमेंट कीजिएगा, और फर्दर जो वो आगे जाएगा। फिर आप यहाँ पर डिज़ाइन कीजिएगा, आपकी यहाँ से डिज़ाइन, क्रिएट बिजनेस डीएनए, आप उसको डीएनए बताएं कि आपका बिजनेस क्या है, कैंपेन स्टार्ट करिएगा और क्रिएशन कीजिएगा और लेट्स गो कीजिएगा, तो आपका जो पूरा बना के देगा। बड़ा इजी है, स्टेप बाय स्टेप आपको खुद ही बताता जाएगा और बनाता जाएगा। आप जैसे जैसे बनाते जाएंगे बड़ा इजी जो है वो तरीके से आप उसको बना सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको जो है वो चैट में डाल देता हूँ। Okay, we have seen a lot of pros of AI today. There are any cons that which is should be careful of? Yes, देखें AI बहुत अच्छा है, बट अभी आजकल जैसे मैं लास्ट जो वो टीन्स के जब कर रहा था, तकरीबन 14-15 साल के बच्चे थे, तो जब मैंने उनसे पूछा कि जो ना आप जब AI यूज़ करते हो, सो व्हाट एग्जैक्टली डू यू यूज़ एंड हाउ डू यू यूज़, तो उन्होंने बोला द AI इज़ फॉर मी इज़ अ बडी, is my friend, is my kind of a thing which I'm using daily basis. So I said, how you are using and what you are using? So he said, I do my homeworks with AI. I ask anything what I have not understood. A few people said that I learn from it and then I utilize it in a way that I want to do. But कुछ लोगों ने बोला कि I just do copy and paste. बच्चों बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। इसी तरह से वर्कर्स एंड ऑल दैट भी ऑल्सो ये सेम चीज़ समझते हैं। देखिए, for me, if I give that answer, the AI is there for upgrading your productivity, increasing your efficiency.
मगर कुछ लोग जो है वो उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि उसको अपना माइंड यूज़ नहीं करते। मैं एक ईमेल की मिसाल देता हूँ अस्यूम, तो आप अगर उससे ईमेल लिखवा सकते हो, बट अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गिव एन अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट काइंड ऑफ ईमेल यू वांट टू राइट, राइट। वो तो आपके लिए लिख के दे देगा, बट आप पहले अपना जो वो थॉट डालते हो, वो थॉट डालना जरूरी होता है। और कॉपी पेस्ट मत करें, दे कैन मेक मिस्टेक, यू कैन एक्चुअली लिसन, अंडरस्टैंड एंड सी ऑल्सो हाउ यू कैन डू। बहुत सारे लोग जो वो उसमें ईमेल लिखवाते हैं, बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसके पैटर्न समझते हैं कि वो कैसे लिखता है, मैं ऐसा क्यों नहीं लिख रहा था पहले, और फिर वो बाद में खुद लिखने की कोशिश करते हैं। दैट्स वेयर एक्चुअली यू आर लर्निंग एंड अप्लाइंग, नॉट ओनली कॉपी एंड पेस्ट, यू आर लर्निंग एंड अप्लाइंग ऑल्सो। सो आपको लर्न करके उसको अप्लाई करना है, rather than you just have to do a copy and paste. But people find easy way also, for the way they want to do. तो अब कुछ लोग जो वो उसको अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग बुरा बोलते हैं, but AI is there. AI can actually AI is replacing a lot of people. In US, I was in one of a session, one of webinar, sorry, one of event, एक ट्रेड शो था पूरा, जिसमें एक बंदे ने बोला, बड़ा बिजनेस जो वो है उनका यहाँ पर, उन्होंने बोला कि वी हैव 45,000 एम्प्लॉयज, एंड यू नो व्हाट ही सेड दैट आउट ऑफ 45,000, 25,000 आर माय AI एजेंट्स, मीन्स दैट देयर इज नो एम्प्लॉय, एक्चुअली देयर इज एन AI पीपल वर्किंग बिहाइंड बिहाइंड द सीन्स। तो इसी तरह से लोग जो वो नई नई चीज़ें कर रहे हैं, बट अगेन आई अंडरस्टैंड, आपके अंदर एक एंग्जाइटी है, क्या होगा कैसे होगा, बट हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ सीखना है। इमाम हैज मेड अ लॉट ऑफ फरमान ऑन दिस वन, कंटिन्यूअस एजुकेशन। टेक इज इन ऑल बिजनेसेस, इफ यू आर अ लॉयर टेक विल बी देयर, if you are an engineer tech will be there, if you are a doctor tech will be there, if you are in any profession tech वहाँ पर है, टेक्नोलॉजी वहाँ पर है, डिजिटल वहाँ पर है, AI वहाँ पर होगा। आपको अभी से ही चीज़ें सीखनी है और अप्लाई करनी है अपनी बिजनेसेस में, और आपको मेक श्योर करना है कि आप अंडरस्टैंड करो। बट अगेन यू हैव टू इंक्रीज योर नॉलेज ऑल्सो। Right now you just understood how to build an app, right? So now you have to be creative, that what kind of app I can create, what kind of applications I can create that which people can use। और इसमें कोई भी कोडिंग की तो ज़रूरत है नहीं, आपने कुछ तो कोडिंग डाला नहीं, आप खुद ही जो है वो उसमें अच्छे से करके आप जो है वो चीज़ें कर सकते हो। थिंक समथिंग आउट ऑफ बॉक्स, दैट हाउ यू कैन इंक्रीज और हाउ you can grow in your particular way। I hope I answered your question। Please share the link of WhatsApp group। Yes, the team will share the WhatsApp group links। जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब आपको WhatsApp ग्रुप में भेजूंगा, और सब आपके आपके साथ जो है वो उसकी लर्निंग वीडियोस के साथ आपको भेजूंगा, ताकि आप जो है वो उसको अच्छे से सीख सको। ओके, फाइनल। मैं यहाँ पर एक और भी चीज़ आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पर गूगल AI स्किल्स जो वो भी अच्छा है। मैं आपको गूगल स्किल्स, या दिस वन, नो, गूगल स्किल्स। ओके, दिस इज गूगल स्किल्स। यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर ज्वाइन करना पड़ेगा, और फिर ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर आप पूरी इसकी कैटलॉग देख सकते हो। इसमें बहुत सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं, आप कुछ भी कोर्स आपको सेलेक्ट करना हो, सर्च करना हो, यहाँ पर क्लिक करके भी आप सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग, क्लाउड, जनरेटिव AI, डेटा एनालिटिक्स, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, एंड वट एवर course you want to learn, you can actually learn from this one, and then you can click get started and you will see there are different courses also available। for example यहाँ पर आप देख रहे हैं किस courses जो पड़े हुए हैं, ये आपको कुछ courses आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं। some courses are free, some courses are paid like सर्टिफिकेट की छोटी मोटी कॉस्ट होती है, but most of the courses available here are free।
एक्चुअली आप उसको फ्री, अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो सब फ्री है। कई सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा आपको उसमें पे करना पड़ता है, बट सब वंडरफुल कोर्सेज विच यू कैन एक्चुअली फाइंड। इसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, हैंड्स ऑन लर्निंग है, टूल्स देते हैं ये लोग, मटेरियल बेचते हैं, आपको प्रेजेंटेशंस देते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करते हैं, आपको टास्क भी देते हैं, आपको एक असाइनमेंट्स भी देते हैं, आपको पूरी एक कंप्लीट होलिस्टिक, जैसे अपन एक लर्निंग कर रहे होते हैं, इस तरह से आपको वो पूरा एक जो वो सिखा रहे होते हैं। तो आप इसमें बिल्कुल फ्री है ये, आप इसमें इसको साइन अप करके जो है वो भी सीख सकते हैं। इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, एंड आई विल रिकमेंडेड कि आप इसको ट्राई करें, आप उसको देखें कि आप किस तरह से जो है वो उसको सीख के जो कर सकते हैं। मैंने आपको लिंक चैट पे भेजा है, और आप ज़रूर जो है वो उसको ट्राई कीजिएगा। गूगल स्किल्स इसको बोलते हैं, और उसमें बहुत सारे जो है वो मेन्यूज़ होते हैं, क्लाउड, टर्निंग एंड पाथवे जो है वो से आप उसकी चीज़, अगर आप अपना करियर जो है वो इसी एरियाज़ में बिल्डअप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सीख के भी जो है वो कर सकते हैं। फाइनल थॉट्स? Okay, there are some applications which I've already sent earlier. मैंने बहुत सारी applications जो वो बनाई थी कुछ, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। AI tools जो मैंने आपको भेजे थे, AI tools फॉर एवरीवन। ये एक कुछ बहुत सारे AI टूल्स, अल्टीमेट AI टूल्स जो वो बनाए थे, 200+ AI टूल्स हैं इसके अंदर, जो नेम के साथ उसकी डिस्क्रिप्शन और किस चीज़ के लिए वो यूज़ होता है और इसकी पॉपुलैरिटी क्या है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट। वहाँ पर इसके लिंक भी पड़े हुए होते हैं, और आप कुछ भी जो है वो उसमें जाके, इसमें लिंक्स भी हैं, और आप उसको यूज़ कर सकते हो। कुछ मैंने 50 AI अदर टूल्स भी मैंने यहाँ पर निकाल के रखे हुए हैं विच यू कैन एक्चुअली यूज़ इफ़ यू वांट ऑल्सो फॉर योर डेली पर्पसेस। कुछ स्टूडेंट डिस्काउंट्स के भी मैंने डाले हुए हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये टूल्स आपके लिए फ्री होता है। आपको सिर्फ उसमें डालना पड़ता है कि आप स्टूडेंट हो, आपको जस्टिफाई करना पड़ता है, आपको डॉक्यूमेंटेशन भेजनी पड़ती है। अगर आप स्टूडेंट हो, फॉर एग्जांपल लाइक गूगल प्रो, जेमिनाई और गूगल प्रो, आप जो उसको, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अपनी आईडी डाल के उसके अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये भी मैंने कुछ इसके अंदर स्टूडेंट डिस्काउंट कोर्स वगैरह डाले हुए हैं। ये मैं आपको इसके लिंक ऑलरेडी मैंने आपको ग्रुप पे भेजा है, अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको वापस से जो वो भेज दूंगा। हाउ मेनी ऑफ यू डोंट हैव दीज AI टूल्स फॉर एवरीवन? इफ यू कैन जस्ट से yes or no, then I can send you in the group. No, okay. So I see a lot of no's. I can send in the group again. Those who are not in the WhatsApp group, please do register yourself in the WhatsApp group. आपके पास ऑलरेडी ऊपर शीतल ने जो है वो DRC का, और शायरोज ने जो है वो मोजम्बिक का जो भेजा है। और एक चीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि एक ही बंदा दोनों ग्रुप में मत जाए, क्योंकि जो मटेरियल मैं वहाँ भेजूंगा वही मटेरियल मैं वहाँ भेजूंगा, फिर आपके लिए ही डबल हो जाएगा, और आप ग्रुप की कैपेसिटी भी जो है वो कम कर दोगे। वहाँ पर अननेसेसरी एक ही बंदा दोनों ग्रुप में होगा। तो अगर आप अभी भी हैं तो आप प्लीज़ जो है वो अपने आप को एक ग्रुप में से किसी भी में से जो है वो आप निकाल सकते हैं, जिसमें आप समझते हैं कि आप इतना क्लोज नहीं है उस कंट्री से, तो आप अपने आप को निकाल दें। जिसमें आप सबसे ज़्यादा क्लोज हैं तो वहाँ पर अपने आप को रख दें। और जो वो दोनों ग्रुप्स में मत जाइएगा, क्योंकि होता क्या है कि लोग, लिंक मिलता है ना बस व्हाट्सएप ग्रुप का, बस ज्वाइन करना है उसको, फिर जो काम का हो कि नहीं हो, उसको ज्वाइन करके हमें जो है वो बैठना है उसके अंदर। तो ये हमारे जो एक रही है लोगों की ना तो आप कोशिश कीजिएगा कि दोनों ग्रुप में आप नहीं हो, किसी भी एक ग्रुप में आप जो वो हो, ताकि जो वो आपके पास कन्फ्यूजन भी नहीं हो और आपके पास कुछ नहीं हो। क्रिएट कम्युनिटी फॉर बोथ ग्रुप्स, हो there will be no confusion. Yeah, we can create that community, but there is a two councils, two different areas they want to learn. But it's a good idea, Nilesh, who said that we can create the community. I can think on these lines also. Final thoughts. ओके, सो मैं आपको सारी एप्स और एप्लीकेशंस भी आपको भिजवा दूंगा। आई एम श्योर आप जो वो आज के सेशंस में आपको बहुत लर्निंग मिली होगी। वी विल सेंड यू द लिंक फॉर योर फीडबैक। एंड एक चीज़ मैं खाली आपको बोलूँगा कि आप जो है ना वो लर्निंग करते रहें, नई चीज़ सीखते रहें। डू नॉट स्टॉप योर लर्निंग, डू नॉट द वे you are learning right now. The things are really increasing, the things are really changing in the entire AI spam, and we have to learn as quick as possible in whichever age you are. If you are a youngsters, wonderful, keep learning. अगर आप जो वो मिडल एज में हैं, आप अगर आप 20s में हैं, 30s में हैं, 40s में हैं, do not stop your learning, keep learning. Do not think that okay, I cannot do it. Try again and again, and I'm sure you do it. Try something new also, the way you are doing it. Don't use only ChatGPT. ChatGPT is a wonderful tool, by the way. They are also growing a lot, but do not use only ChatGPT. Use some other tools also.
use some other LLM where you can actually understand and build some good stuff over there. जो हमारे नेक्स्ट सेशन होगा, मैं आपको एक मिनट, अगर वो मेरे पास उसकी पड़ी हुई है। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम जो है वो बहुत सारी नई चीज़ें जो है वो सीखेंगे। मैं आपको जो है वो एक पूरा वर्क फ्लो ऑटोमेशन जो है वो करके दिखाऊंगा कि आपका पूरा वर्क फ्लो ऑटोमेशन कैसे होगा। आप किसी भी ऐप एप्लीकेशन को जो है वो किस तरह से कनेक्ट कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ों को कैसे कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़, दो चीज़ें मैं आपको और सिखाऊंगा, उसके बाद फिर हम जो है वो सेशंस को बंद करेंगे। एक मिनट आप मुझे, गिव मी 1 सेकेंड। ओके, एनीवेज, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, देखें आप मैजिक देखें। अगर ये आप गूगल जेमिनाई यूज़ कर रहे हैं और आपके जीमेल के साथ वो कनेक्टेड है, मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। ये भी एक जो पूरा वर्क फ्लो ऑटोमेशन होता है। अब देखिए यहाँ पर आपने गूगल जेमिनाई आपने यूज़ किया। अब मेरी आज की कुछ ईमेल्स होंगी, राइट। यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर बहुत सारी ईमेल्स जो है वो मेरे पास आई हुई है, और कुछ ईमेल्स मैंने रीड कर लिए, कुछ नहीं किए। अब यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ कि मेरा रीड, मैं यहाँ पर सबसे पहले उसको जीमेल कनेक्ट करता हूँ। मेरा जीमेल कनेक्ट हो गया अभी, ठीक है। ये मेरा जीमेल कनेक्ट हो गया, मैंने ऐड जीमेल किया, वो जीमेल कनेक्ट हो गया। मैं बोलता हूँ रीड माय टुडेज ईमेल एंड समराइज दिस फॉर मी। अब ये देखें, मुझे मेरी आज की जो ईमेल्स है उसको वो रीड करेगा वर्क फ्लो ऑटोमेशन के ज़रिए, और मुझे बता रहा है कि मुझे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ऑनलाइन कम्युनिटी से ये जो वो ईमेल आई है, मुझे लिंक्डइन इनविटेशन आया है, और मुझे ये आया है, वो आया है। अमीन खुरजी ने मुझे लिंक्डइन बिजनेस, ये यहाँ पर ये है, और इसने मुझे लिंक्डइन इनविटेशन भेजा है, और ये भेजा है। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि एनीथिंग रिलेटेड टू एआई, तो मुझे भी बताएगा कि हाँ कोई एआई से जरिए रिलेटेड है नहीं है। वही ईमेल है मेरे पढ़ रहा है, राइट। मैं अभी ईमेल पे नहीं गया हूँ, मैं अपनी ईमेल को खुद जो है वो यहाँ पर समराइज कर रहा हूँ, और खुद ही जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, और खुद ही जो है वो उसको देख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये आ गया कि यस, देर आर फ्यू थिंग्स विच इज़ रिलेटेड टू द एआई, एजेंटिक एआई, अप्लाइड ऑर्गेनाइजेशन, एमआईटी। आपका आ गया जीएचआरए में आपका सेशन है, गर्ल स्काउट प्रोजेक्ट जो वो आप कर रहे हो जिया के साथ, वो है अप्लाइड बिजनेस टैक्सेस जो वो उसमें आपके जो सेशन होने वाला है वो उसके बारे में आपको बता रहा है। अब जो भी मेरी कुछ ईमेल है वो यहाँ पर देखें, यहाँ पर उसके ऊपर आ गया। अब मैं इसको बोलता हूँ कनेक्ट कर, कनेक्ट। अभी देखिए कितनी सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकता है। यूट्यूब कनेक्ट कर सकता है, यूट्यूब वीडियो कर सकता है, गूगल डॉक कर सकता है, कुछ भी आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं कैलेंडर अगेन कनेक्ट करता हूँ उसमें, और कैलेंडर कनेक्ट करने के बाद मैं उसको बोलता हूँ कि डू आई हैव एनी एआई सेशन टुडे। ओके, अब मेरे आज के सेशन अगर मेरे कोई हैं, तो मेरे कैलेंडर से कनेक्ट करके मुझे बता रहा है कि कोई मेरे आज सेशन है। देखिए आप मुझे बता दिया, एक मेरा सेशन है आपके साथ, और आपके बाद जो है वो एक दूसरा मेरा सेशन है गर्ल्स स्काउट्स के साथ। तो दो मेरे एआई सेशंस जो है वो मुझे बता दिया कि आज आपके ये दो एआई सेशंस हैं। सो अभी इसमें और अगर मैं जाऊं तो और भी कुछ बात कर सकता हूं। जैसे मैं अगर गर्ल्स स्काउट का सेशन ह्यूस्टन में दे रहा हूं, तो मैं उससे पूछूंगा व्हाट इज द वेदर ऑफ ह्यूस्टन, डू आई नीड टू टेक एन अम्ब्रेला एंड ऑल दैट। सो अभी ये देखिए इंटरेक्शन हो गया, और पूरा जो है वो मेरे यहाँ पर मेरा अपना गूगल वर्क स्पेस ऑटोमेशन जो है वो कर दिया। इसी तरह से आप ईमेल के अंदर भी कर सकते हो, इसी तरह से आप ऑटो ईमेल्स जो वो जनरेट करवा सकते हो, और जो वो पूरी आपकी गूगल जेमिनाई जो है वो आपका कर दिया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट यू कैन कीप लर्निंग। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम ये ऑटोमेशन जो है वो और मज़ीद सीखेंगे। मैं आपको पूरा एक ऑटोमेशन सिखाऊंगा
कि आप कैसे जो है वो चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हो, नॉट ओनली दिस ईमेल्स एंड कैलेंडर्स बट ऑल्सो हाउ टू क्रिएट, फॉर एग्जांपल अभी आप अगर कोई गूगल फॉर्म का जवाब देते हो, राइट, अब उस जवाब देने के बाद आपके पास एक ऑटो ईमेल चली जाएगी। आप अगर कोई ट्रेड एसोसिएशंस चला रहे हैं या आपके पास कोई इन्वेंट्रीज हैं, तो जैसे इन्वेंट्री इन होती है तो आपके पास एक मैसेज आ जाए कि इन्वेंट्री इन हो गई है। इन्वेंट्री की जो है वो उसकी प्राइस अपडेट हो जाए ऑटोमेटिकली। इसी तरह से आपकी एक्सपेंस लिस्ट को जो है वो कैसे अपडेट किया जाए, कैसे जो है वो ऑटोमेटिकली वो क्रिएट हो जाए और आपकी जो है वो चीज़ें बन जाए। तो नेक्स्ट सेशन में हम वर्क फ्लो ऑटोमेशन, एआई वर्क फ्लो ऑटोमेशन और एआई एजेंट्स के बारे में सीखेंगे। दैट विल बी आवर नेक्स्ट सेशन एंड दिस विल बी एन अमेजिंग सेशन for all of us, and this will be completely 2 hour session, and I'm sure it will be a very good learning journey for you, and you can create amazing things at your own. With this, I would like to thanks again to our DRC and also Congo team and also our Mozambique team who have given me this opportunity, and our Jamaat from both countries who have really attended this session. And the recording will be available. You can see the recording. Those who have missed, I know this today was a holiday, so some people may have missed, and we will share the recording also with both of you. So back to you, and thank you so much for all your time and efforts. સો મચ કાઉન્સિલ ફોર મોઝામ્બિક અને કાઉન્સિલ ફોર કોંગો તરફથી હું આજે આ પ્રોગ્રામમાં જોઈન થયેલા બધા જમાતના મેમ્બર્સનો દિલથી આભાર વ્યક્ત કરું છું. મોઝામ્બિક અને કોંગોની જમાતે આજે પોતાનો કિંમતી સમય આપીને આ ઓનલાઈન સેશન જોઈન કર્યું, એના માટે તમને બધાને ઘણો ઘણો આભાર. આ પ્રોગ્રામ માટે એક ખાસ અને દિલથી આભાર મિસ્ટર ફહીમને, જેમને પોતાનો સમય, જ્ઞાન અને અનુભવ ઘણી ઉદારતાથી જમાત સાથે શેર કર્યો. તમારી આ સેવાથી જમાતને ગૂગલ એઆઈ સ્ટુડિયો વિશે નવું શીખવા મળશે અને આપણને પૂરો વિશ્વાસ છે કે જમાત આ જ્ઞાનનો સાચો ઉપયોગ કરીને નવી અર્નિંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી ક્રિએટ કરશે, પોતાની નોલેજ વધારશે. આ સેશનથી જમાતને એઆઈ વિશે સમજ વધશે અને આ ટેકનોલોજીનો પોઝિટિવ રીતે ડેલી લાઈફમાં યુઝ કરવા માટે મદદ મળશે. આપણે દુઆ કરીએ છીએ કે મૌલા મિસ્ટર ફહીમને ઘણી બરકત, સહેત અને કામયાબી આપે અને સાથે સાથે આપણી જમાતને પણ મૌલાના ફરમાન પર ચાલતા રહેવા અને પોતાની જિંદગીમાં તરક્કી કરવાની તૌકીફ આપે. ફરી એકવાર મિસ્ટર ફહીમ, થેન્ક યુ સો મચ for the bottom of our hearts. Yali Madad, thank you everyone. Thank Bye you, bye. thank you. एक मिनट before we all go, I want you all to open your videos or cameras, तो हम सब एक पिक्चर्स निकाल सकें और एक पिक्चर जो है वो हम उसको रिकॉर्ड में रखें. So please open your cameras if you can, so that we can all see Shahroz wonderful. Riaz bhai always gives a thumbs up to all my posts. Thank you so much, Riaz bhai. I can now connect your name and also with my post. So Anil Huda, thank you so much. Anil bhai, Amir Hirani and Iris, okay, wonderful, and Sunita Charania, okay, wonderful, good to see people in the both countries. We have HP also, we have Sheetal, wonderful, amazing, Sevadari, and we have Vivo also, the phone name, so amazing. So is anyone taking the picture, or you want me to take? Okay, so let's cheese. Give me 1 second again. Another one. Okay. 1, 2, 3. Perfect. I have your photo with me and I will share in the both groups. And thank you so much. And Cheetal, Charos, and Sunita, thank you so much for all your Thank you. Tasneem. Thank Thank you you so so much. much, sir. Wonderful. And thank you Wonderful. everyone for joining today. Thank you so much. Thank you. Thank you everyone from Mozambique and DRC. Thank you, Fahim bhai. Thank you. Thank you. Inshallah, Thank we you. will meet soon. Okay. Thank you. Yali Madad. Yalla Madad, Yalla Madad. Madad. Okay, okay.